that signifies the cultural base of Telangana. We are proud to have you, sir, as a representative of our country. Thank you, sir. Please shower your words and blessings on us. Thank you, sir. Sir, please start. My heartfelt congratulations to the Coaching Federation of India and all the office bearers along with the respective state heads on this curtain raiser event to benefit all stakeholders. That includes marginalized sections of our population. Congratulations to President Coaching Federation of India, Mrityunjay R. Narayanji, his dynamic team, including the General Secretary Krishna Chaitanya Kausla and Vice President Ashish Gambhir, and their efforts to make this possible in such a short time. Applause to the efforts of pedagogy team in coming forward to help the members of coaching fraternity. And on this occasion, and our Dr. Vijay Kumar, advisor, Adarsh Sangathan, Odisha Vidyalaya, and famous ex-Indian cricketer, CAC member, Sri R.P. Singh ji, and Brijesh Maheshwari ji, Pramod Maheshwari ji, Praveen Tyagi ji, MS Chauhan ji, Raj Kushwaha ji, Ashish Vaishnav ji, A.K. Jha ji, Ashish Arora ji, S.R. Mishra ji, और शिशिर मित्तल जी और आनंद जायसवाल जी. Dear respected members from the Coaching Federation of India, I am happy to address such a huge gathering of teachers and technology experts. Your contribution towards shaping the country is immense, and cherish opportunity to talking to you. Education is not just about teaching. It is what remains after teaching. It's about developing the child's thinking, skills, and making them ready to chisel their bright career, and also help in contributing towards the growth of the nation. Coaching institutions for a long time were instrumental in helping the students realize their aspirations. Many of them credit their teachers and coaching institutions in helping them reach great heights, utilizing the knowledge imparted to them. I congratulate the Coaching Federation of India in terms of bringing together all the coaching institutes under one roof with the mission of bringing collective standards in the courses provided and instilling the ethical practices across the industry. Many poor students realize their dream, and the ladder connecting them to their dream is education. I also congratulate CFI to come out with the social initiative in terms of educating the poor students and helping them realize their dreams.
साथ ही हाथ बढ़ाना is an excellent social initiative of Coaching Federation of India, particularly when it is focused towards those who are struggling for want of enough resources and get passionate about making the mark in their career. Providing free training to 1,000 students, the first step in the direction, and is very, very commendable. And I agree, it is the vernacular medium where intention would be maximum. National Education Policy 2020, मातृभाषा अपने दिल को छूता है. मातृभाषा जो है हमारी पहचान होती है. मातृभाषा से हम बहुत कुछ ग्रहण करने का और हम बहुत ही जो है मूलों तक जाकर अपनी पहचान कर सकते हैं. इसलिए मातृभाषा में जो शिक्षा होती है वो मजबूती होती है. किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं रहती है. अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से इसे और आगे बढ़ सकता है. तो इसलिए ये मातृभाषा जो है इस बार अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सारे देश में भिन्न भिन्न प्रांतों में अपने मातृभाषा में सिखाने का जो है पॉलिसी में जो अडॉप्ट किया है ये बहुत ही जो है सराहनीय है. विशेष करके ग्रामीण युवक, पिछड़े वर्ग के लोग, SC, ST, BC, माइनॉरिटी, ऐसे लोग जो है ये लोगों को जो है जल्दी जो है अपनी मातृभाषा से ये होती है. तो इसलिए मैं all my best wishes to the students, and I certainly hope that they realize their aspirations to become the best technocrats or doctors, whatever they dream to become. I am really happy to note that the dream of our Prime Minister for a digital revolution in the school education and coaching domain is coming true through the Coaching Federation of India and Pedagogy Android application to deliver the courses to the remotest part of our country and also empower small and medium-sized coaching institutions by giving them free technological ecosystem to deliver their online and recorded classes, conduct, test and deliver assignments. This will help the institutes sail through the current pandemic and also help the students community get hassle-free online lectures with the best of technology. Online learning will help not just through this pandemic, but also would be promising in future and will help education to reach every nook and corner of the country. India is a young country. The potential of youth realized properly, we will be world leader in no time. Technology will have a great role in skilling India and educating India. With this, I am happy to note that almost 1 million students through these 3,000 odd institutions will reap the benefit of coaching across the country through online and mobile learning. और मैं अंत में और एक बात कहना चाहता हूँ
विशेष करके टीचर जो है विद्यार्थियों को बहुत ही जो है मोटिवेशन करना और एक रोल मॉडल के रूप में अगर उनका वाणी सुना जाता तो उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। और आधुनिक इस टेक्नोलॉजी के इसमें हम बहुत जो है केवल समाचार नहीं, ज्ञान को जो है विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाना है। तो इसलिए आदर्श भी बहुत ज़रूरत है। केवल आपके कोचिंग से केवल वो डिग्री प्राप्त ना हो, लेकिन उसके जीवन में एक बुनियादी समाज सेवा करने के लिए और समाज से जोड़ने के लिए और समाज के तत्परता से सेवा करने की भावना, ये भी जो है इसमें निर्माण हो सकता है। तो इसलिए हमारे टीचर्स, उनका जो रोल है बहुत ही बड़ा सराहनीय है, जीवन में प्रभाव ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसलिए टीचर्स को जो है विद्यार्थी अगर डिसिप्लिन, डेडिकेशन और मॉरल्स, ये तीन बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तीन बातों को भी ध्यान में रख के अगर हम कोचिंग देंगे तो बराबर जो है वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने में और अपना जीवन को उन्नत स्थिति में लाने के लिए और कुछ उसको मदद मिलेगी। तो इसलिए और एक बार मैं सभी लोगों को इस आयोजन करके इतना बड़ा प्रयोग आप लोगों ने किया, सब लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Jai Hind. Thank you very much, Governor Saab. It's been a real pleasure in listening to you, you know, and last advice which you have given to the teacher fraternity is of immense value, and we will all abide by that. Ensure that we follow the ideals given by you and take it to greater heights. Thank you very much for your time, sir. Jai Hind. Rajiv Mishra sir, I invite you to invite RP Singh जी। अब मैं महान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और करंट सीएससी मेंबर श्री आरपी सिंह जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो सीएफआई के लिए 2 शब्द कहें। धन्यवाद राजीव। ऑनरेबल गवर्नर हिमाचल प्रदेश बंगाल आपका एक और आवाज, वो दूसरा फोन म्यूट कर दीजिए। आत्मी प्रमोद महेश्वर इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया है, और आपका स्पेशल धन्यवाद राजीव, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आपने इसके लिए मुझे इनवाइट किया। अगर मैं फेडरेशन की बात करूँ या एसोसिएशन की, तो बहुत आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में। क्रिकेट की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर बीसीसीआई है जो सही टैलेंट को नर्चर करता है और उनको ऊपर तक लेके जाता है। तो मेरा ये भी मानना है कि कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी शायद वैसा ही काम रहेगा कि अच्छे टैलेंट को परखे और उनको आगे की तरफ लेके जाएं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जी के लिए, एनईटी के लिए, अगर मैं अपना ध्यान रखूं, मैं अपना पीछे जाऊं कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, तो शायद हमारा और जो आज आपके जो विद्यार्थी हैं, जो आपके कोचिंग सेंटर में लोग आते हैं, उनका संघर्ष लगभग बराबर ही रहा होगा। मैं भी 5 बजे उठता था खेलने के लिए और हमारे व्यायाम और एक्सरसाइज के लिए, और मेरे साथ साथ हमारे शिक्षक भी उठते थे, हमारे कोच भी उठते थे बच्चों के साथ साथ। तो फेडरेशन या एसोसिएशन का मेन काम मुझे लगता है कि बच्चे और शिक्षक के बीच में जो समन्वय होता है वो स्थापित करना होता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे मोटे इशू आते हैं जो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। और मैं भी, जैसे हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने बोला, कि सिर्फ एजुकेशन ऐसा ही नहीं हो कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कि उनको नीट या जी ही क्लियर करना है, पर एक समुचित विकास होना चाहिए उनका, कि आगे चल के वो देश
की प्रोग्रेस में भागीदार रहें। समाज के साथ साथ अपने विकास साथ साथ देश का भी विकास करें, क्योंकि देश बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब की कल्पनाओं में है कि देश कहाँ एक वर्ल्ड नंबर किस तरफ पहुंच जाए और कितना आगे चले जाएं। साथ ही मैं ये भी मानता हूँ कि कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है, दूसरा जो आज हमने लॉन्च किया यहाँ पर, साथ ही हाथ बढ़ाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है मेरे नज़रिए से। क्योंकि मैं अगर स्पोर्ट्स में जाके देखूँ तो लगभग 60 से 70% बच्चा होता है जो बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसे प्रोग्राम जो बीसीसीआई रन करती है, जिसमें बच्चों को लेकर उनको हम ट्रेनिंग दे के आगे लेके जाते हैं, चाहे वो एनसीए हो चाहे अकेडमीज हो, जहाँ पर उनकी फ्री एजुकेशन होती है। तो ये इनिशिएटिव मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने साथ ही हाथ बढ़ाना जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जब बच्चों को बेनिफिट मिलेगा तो हमारा समुचित विकास होगा। बस क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरा ये भी एक छोटा सा निवेदन कहूँ, या मैं चाहता हूँ कि शिक्षा तो बहुत आवश्यक है और पढ़ाई कोचिंग बहुत जरूरी, लेकिन साथ ही साथ अगर थोड़ा समय बच्चे अपने लिए और कुछ शिक्षक भी अपने लिए निकालें और एक कोई स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट करें 1 घंटे के लिए, तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और समुचित विकास होगा, क्योंकि आपका डेवलपमेंट चौतरफा होगा। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और थैंक यू अदा करता हूँ कि कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस इतने बड़े मंच पे, जहाँ पर मैंने ऑनरेबल गवर्नर सर को भी सुना और साथ में जो शिक्षकगण हैं यहाँ पे, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही इसी तरीके से काम करते रहेंगे और हमारे देश के एक बहुत मजबूत स्तंभ बन के आगे आएंगे। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो भी सजेशन दिए हैं, हम सभी लोग इनको अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजीव, थैंक यू एवरीवन। कैसे सर, अब आप आगे कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं। Ashish ji, I request you to invite Brajesh Maheshwari sir, torchbearer of our industry. Good morning, everyone, sir. I would like to invite Brajesh Maheshwari sir. No need to introduce about Brajesh Maheshwari sir, and he is like torchbearer of our industry. Over to you, Brajesh Maheshwari sir. नमस्कार। नमस्कार। बहुत बढ़िया बात बोली गवर्नर साहब ने। मातृभाषा दिल से निकलती है और दूसरे के दिल को छूती है। वास्तव में आज जो नाम भी दिया इस प्लेटफॉर्म का, साथी हाथ बढ़ाना, ये भी तो एक अंदर से लग रहा है कि साथी बनकर हमको इस प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ आज करना है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग आज निमंत्रित हैं, इनवाइटेड हैं, वो कुछ ऐसा करके जाएं कि आज जो नाम दिया है वो सार्थक हो सके। शुरू करते हैं। अभी आरपी सिंह साहब बोल के गए कि स्पोर्ट्स के अंदर कोचिंग का मतलब क्या है। वैसे हमने इसको एक प्रोफेशनल नाम दे दिया, जैसे लगता है बिजनेस की तरह इंडस्ट्री, क्योंकि कोचिंग का मतलब है ट्रेनिंग, इंटरेक्शन। क्या मतलब है कोचिंग से? कोई कैरियर का डेवलपमेंट हो, कैरियर किस फील्ड में, जिसमें स्किल हो, जिसमें पैशनेट हो, जिसमें रुचि हो, इंटरेस्ट हो, जिससे मन और दिल जुड़ता हो। तो शुरू करते वहां शुरू होता है। हर कोई इस दुनिया में जब भी आता है छुपा प्रोफाइल साथ लेके आता है। ऊपर वाला तय कर चुका है किसको क्या बनना है, लेकिन यहाँ जिंदगी सफर में होड़ा उड़ी चलती, देखा देखी चलती है। पेरेंट्स भी देखा देखी करते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। हमें मालूम है तेंदुलकर का एग्जाम्पल है हमारे पास। 10th के अंदर एक इंग्लिश सब्जेक्ट फेल हो गए थे। उनको लग गया था मैं दुनिया में पढ़ाई करने नहीं आया हूँ, कुछ और है। और उन्होंने जहाँ पर दिल मांगे मोर, जहाँ लगाते थे जोर, और बन गए बाद में उसी फील्ड के सिरमौर। क्रिकेट के लिए अपने को पेरेंट्स के हिसाब से पिताजी से आज्ञा मांगे कि मुझे आप इस फील्ड के लिए आज्ञा दें, आशीर्वाद दें। मैं कभी आप पर उंगली नहीं उठाऊंगा कि आपने मुझे पढ़ाया नहीं। और निकल गए और बहुत लंबे टाइम तक पेशेंस रखा। और आपको मालूम बाद में क्या बने तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट, रन बनाने की मशीन। और उनके सम्मान में और उसी महाराष्ट्र बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट में एक चैप्टर का नाम रखा तेंदुलकर। कहने का मतलब ये है कि हमें होड़ा होड़ी नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स, बच्चे सब, पहले हम बचपन से स्टार्ट करते हैं, सब में गजब की एनर्जी होती है।
अभी आरपी सिंह साहब बोल के गए कि सुबह 5 बजे उठता था। अरे क्यों? क्योंकि हमें बचपन में नर्सरी के अंदर, अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, सबसे पहले नर्सरी होता है। नर्सरी में कुछ हमारी बुनियादी बातें हमको सिखाई जाती है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, स्नैक्स मैन, हेल्दी वेल्दी वाइज। किसको पोएम याद नहीं है? हम सबको मालूम है पोएम को हमारे एग्जाम को पास, नर्सरी क्लास को पास करने के लिए नहीं बनाई थी। ये हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म है, ये नेचर से कैसे ट्यून होकर बेस्ट एफिशिएंसी से काम करेगा, एबिलिटी को एफिशिएंसी में कन्वर्ट करेगा, उसके हिसाब से है। हम सब भी जानते हैं, हमने बचपन का दौर गुजारा है। कभी स्कूलिंग की पढ़ाई में नहीं सोचा कि एलकेजी से यूकेजी में कैसे आएंगे, यूकेजी से फर्स्ट क्लास में कैसे आएंगे। अरे नर्सरी सेक्शन का खत्म हुआ जैसे बोला फर्स्ट क्लास, उसने इतनी बुनियादी आपकी नींव तैयार कर दी, इतना अच्छा आपको फाउंडेशन दे दी है कि आप फर्स्ट क्लास तैयार हो चुके हैं। अब आप चाहें तो कोई भी क्लास में आगे बढ़ सकते हैं। फिर आता है प्राइमरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन में कुछ सब्जेक्ट की प्राइमरी बातें होती है। फिर आता है सेकेंडरी सेक्शन, और फिर आता है कैरियर सेक्शन। लेकिन बचपन की जो बुनियादी बातें हैं, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, ये अगर हम बच्चों को वापस सिखाएं, जल्दी सोना, जल्दी उठना, जल्दी हर काम का होना। अरे मॉर्निंग मतलब मोर इनिंग, एक्स्ट्रा इनिंग। सुबह तो गजब की एफिशिएंसी होती है। मैं बच्चों से कहता हूँ, पढ़ाई की जो चीज आपसे कोई भी वो समझने की हो, याद करने की हो, कुछ भी है, अगर आप उसको सुबह करें तो सुबह हमारा दिमाग कुछ अलग तरह का जादू चलता है, उसमें धांसू आइडिया आते हैं। हम सब भी जानते हैं हमेशा धांसू आइडिया कब आते हैं? जब हम मेंटली बिल्कुल रिलैक्स हो, फिजिकली रिलैक्स हो, कोई थकान नहीं हो और एक नई शुरुआत होती है। उस समय अलग ही अंदाज के अंदर हम अपने लिए जो चाहें, उसकी जो हमने एक प्लानिंग करी है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं तो बच्चों से कहता हूँ सुबह तो इस अंदाज में उठना चाहिए कि बस एक नई शुरुआत है, नई एनर्जी है, नए कुछ हमारे विचार उनको इम्प्लीमेंट करना है। और स्टार्ट में उठो, जिंदगी एक सफर, सफर चल रहा है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये आर्ट ऑफ लिविंग कुछ ऐसे चलते हैं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चल रहे हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जान नहीं। ऐसा लग रहा है कि मजबूर होकर जिंदगी को ढो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस एक आगे तो चलो, दुनिया में एक जीना है, एक सफर तय करना है। नहीं जी, ये जिंदगी एक बार मिलती है, वन टाइम वन लाइफ। इसमें तो बचपन की जो बातें हमको सिखाई उनको लेके तो चलिए। बचपन के अंदर, बचपन बाय बर्थ जो हमारे खास कुछ पेरेंटल हमारे एक कह दीजिए बॉडी के अंदर गुण आ जाते हैं, उनको जीवंत रखिए। हमेशा बच्चा हमेशा आज में जीता है, बड़े हो जाते हैं तो पास्ट और फ्यूचर में चले जाते हैं, उस चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन आज में ही हर काम कर सकते हैं। तो बच्चे को आज में जी खाने का मतलब है कि बच्चे से बोलो तुम कुछ भी कर सकते हो। कभी किसी बच्चे को जिसको अपना सपना साकार करना है, वो आप इस कलाकार के पास आया जो कि वो कोच है, जो उसको ट्रेन करना चाहता है, वो हमेशा उसको बोले बेटा तू जो चाहे वो कर सकता है। हमेशा मेरे बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पर मैं कह रहा हूँ तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि बच्चे में एनर्जी हनुमान जी से कम नहीं होती। और आपको मालूम हनुमान जी कैसी शख्सियत हुई है जिसने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। एक हल्का सा मैं किस्सा हल्का सा याद दिला रहा हूं, सबने सुना होगा। भगवान राम हुए थे, हनुमान जी ने सीता का पता लगाया था। लेकिन जब सीता का पता लगाना था उस समय राम जी की सेना पूरी समुद्र किनारे बैठी हुई थी और वो चिंता में थे। हनुमान जी भी उस समय चिंता में बैठे हुए थे कि भगवान श्री राम के, मेरे स्वामी के चेहरे पे मुस्कान कैसे लाऊं, इस सोच में खोए हुए थे। सोचते नहीं बैठे, खोए हुए थे। अचानक उस सेना में भी 2 इंजीनियर थे, उस समय भी इंजीनियर होते थे, नील और जामवंत। वो आए उनके पास, अरे हनुमान तुम किस सोच में थे? और मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करूं। अरे हनुमान ये छोटा समुद्र, तुम 7 समुद्र एक बार पार कर सकते हो। और जैसे हनुमान जी को याद दिलाया कि 7 समुद्र एक बार पार कर सकते हैं, एकदम उठे, छलांग लगाई, हवा में आए। और लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले कुछ नहीं मालूम, माता सीता का पता लगा के आता हूँ। और जाके सीधे लैंड किया, लंका में जाके लैंड किया, लंका को जला के राख कर दिया, खाक कर दिया, रावण की ऐसी तैसी कर दी। ये थे हनुमान जी। हनुमान जी भी भूल जाते थे, उनको एक श्राप मिला था, आप सबको मालूम है। एक बार उन्हें भाई कुछ भी कर सकते थे, इसलिए करने के लिए एक बार छलांग लगाई और सन को एप्पल मान के निगलने की कोशिश करी, तो किसी ऋषि ने श्राप दे दिया, हनुमान तुमने आज ये गलती करी, तुम्हें एक श्राप देता हूं, तुम ये भूल जाओगे कि तुम क्या कर सकते हो, और जैसे तुमको याद दिलाएगा फिर तुम कुछ भी कर जाओगे, जो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ये हमें बच्चों को याद देना चाहिए, बच्चों तुम कुछ भी कर सकते हो। बस उनको बच्चे बना के रहना। बच्चे मतलब आज में जिए वो, बस यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। बाकी पढ़ाई तो क्या बचपन से कर रहा है। बच्चे ने पहला काम ही क्या किया, पढ़ाई करना चालू किया। अब पढ़ाई करने का नेचर बदल गया और क्या है।
पढ़ाई करते करते स्कूलिंग की पढ़ाई चल रही है, स्कूल में कई बातों की नींव रखने के लिए कुछ हमें और तरह की एक्टिविटी करनी पड़ती। हम स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकते, उनके पास कहते लाइब्रेरी है, उनके असेंबली भी, उनका सब्जेक्ट भी है, लेकिन हम और स्कूल मिलके ब्रिज का काम कर सकते हैं। वहाँ नॉलेज बेस पे बच्चा स्कूल की क्लास पास करते आगे बढ़ता जाता है। जैसे आता है कि उसको क्या बनना है, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। यहाँ मैं पेरेंट्स से भी कह रहा हूँ, हम सब भी पेरेंट्स हैं, मैं हमेशा पेरेंट्स से कहता हूँ आपका बच्चा वो बने जो वो चाहता है। जैसे तेंदुलकर ने चाहा और पेरेंट्स ने अलाउ किया, बन गया वो क्रिकेट का सम्राट। लेकिन बच्चों से कहता हूँ समय आने पे बनोगे वो जो वो चाहता है, क्योंकि उससे ज्यादा किसी के हाथ में, वो तो पावर हाउस है साहब, वो तो पिता, हमारा परम पिता परमेश्वर है। उसने क्या डिसाइड किया वो है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसके लिए। आप सबने नाम सुना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आज भी याद करे तो मन करता करे सलाम। क्या बनना चाहते थे? बनना चाहते थे पायलट, लेकिन बने क्या? क्योंकि वो कुछ और चाहता था। बस सपना देखा था पायलट बन जाऊंगा। 6th क्लास के अंदर अपने गुरु के साथ समुद्र किनारे टहल रहे थे, ऊपर हवा में हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा, एक सपना पाल लिया, गढ़ लिया कि मैं तो पायलट बनूंगा। और उसके हिसाब से एक एनडीए का एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गए। जबकि इतने मेधावी छात्र थे, पढ़ने में इतने गजब के, और आपको मालूम परिवार की स्थिति क्या है। एक सिंपल, एक कह दीजिए परिवार के हिसाब से एक सिंपल नाविक के बच्चे थे। शुरू से पढ़ाई स्कॉलरशिप से हो रही थी, लेकिन सपना पा लिया बनेंगे पायलट। एनडीए का एग्जाम दिया, जो हमेशा फर्स्ट आते थे हर क्लास में, हमेशा टॉप करते थे, एनडीए एग्जाम में फेल हो गए। कुछ टाइम के बाद आईटी का एग्जाम दिया, और कहा आईटी का एग्जाम, कहा एनडीए का एग्जाम, सबको मालूम लेवल का अंतर क्या होता है। और ऐसा स्कोर किया, इसी दोस्त से मैं आईटी मद्रास बोलते वहां पहुंचे, और वहां जाके वापस से हर बार फर्स्ट, हर बार टॉप करते गए। आगे जाके तो कॉलेज को टॉप किया, उसके बाद तो आपको मालूम है साइंटिस्ट बने गोल्ड मेडलिस्ट के हिसाब से, और उसके बाद तो मिसाइल मैन बने, और उसके ऊपर सबसे ऊपर देश के संत राष्ट्रपति बन के गए, एक सबसे बड़े बेहतर इंसान बन के गए। एक टीचर क्या होता है ये डिफाइन करके गए कि हमेशा टीचर में, ट्रू टीचर के जो गुण होते हैं वो हमेशा रहने चाहिए। कौन है शिक्षक? वो बता के चले गए। शिक्षक कौन है? जो विद्यार्थी की कमजोरी को दूर करे, उसकी गलतियों को माफ करे, गलतियां होती है, और उसको शिखर तक पहुंचाया, जहां उसको पहुंचना, उसके मंजिल तक पहुंचाए, वो है शिक्षक। कौन शिक्षक? जिसमें खुद में शिष्टता हो, क्षमता हो और कलाकार हो, वही तो शिक्षक है। अभी बोल के गए हमारे आचार्य, हमारे आदरणीय गवर्नर साहब, कि हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा, उसमें अगर शब्दों को देखें तो उसी से कई बार भावार्थ निकलता है, शिक्षक का मतलब क्या है, वही हमारे व्यवहार में आ जाना चाहिए। अब साहब देखिए, वो बनना चाहते थे पायलट, घूम जाते, कितना नुकसान हो जाता देश का, ऊपर ही ऊपर घूमते रहते, उनकी लाइफ तो ऊपर ही चलती, लेकिन बने क्या? बने एक बेहतर इंसान, संत राष्ट्रपति, मिसाइल मैन। एक देश को ऐसी विभूति नहीं मिलती, हमारा देश वंचित रह जाता। आज भी हम उसके एग्जाम्पल के द्वारा, उनकी कई ऐसी बुक्स निकली बच्चों के लिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्या समन्वय होना चाहिए, विंग्स ऑफ फायर। एक टीचर कौन अच्छा है, एक स्टूडेंट कौन अच्छा है, एक डिलीवर है, एक रिसीवर है। जब ग्रहण करना हो, रिसीव करना हो, तो बिल्कुल समर्पण कर दो, जो है उसमें ब्लाइंड फेथ करो। जैसा मंदिर में जाता है, हमारे जो रिलीजियस के, हमारे जो आराध्य हैं, जो हमारी तीसरी पावर है, उसके सामने हम बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं। ऐसे गुरु का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर है, उस थर्ड पावर जिसको आप जिस भी नाम से पुकारें, ईश्वर, गॉड, मसीहा, भाई, गुरु, अल्लाह, जो भी कह दीजिए, उससे भी ऊपर है। तो वहां पुल को समर्पण होना चाहिए। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति, जो कि वास्तव में हमारी बहुत बड़ी ताकत है, वो हमारे वापस बच्चों में संस्कार आने चाहिए। इसलिए अभी कहा गवर्नर साहब ने, संस्कार भी जरूरी है। हमारा तो एक स्लोगन है एलन का, संस्कार से सफलता तक। जो संस्कारित होगा वो तो सफल होगा, उसका सपना तो साकार होगा, क्योंकि उसको संस्कारित को हमेशा बाहर से दुआएं मिलती हैं। जो भी आसपास रहने बोले यार बच्चा जो कर रहा है उसको उसका पूर्ण करे, उसको निपुणता है, उसको वहां तक पहुंचाए जो इसकी मंजिल है। अपने आप दुआओं से भाग्य का निर्माण होता है, और अब जब भाग्य स्ट्रांग हो जाता है, मेहनत तो करी है, तो फिर मंजिल तो मिलती है। वो जो कामयाबी चाहिए वो सफलता तो अर्जित होती है। तो ये बातें जो है पढ़ाई के हिसाब से, कोचिंग वर्ड को अपन लेके चले। जैसे हम घर में किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसको ट्रेन कर रहे हैं, वो दर्द होगा तो फिर हम बच्चों के साथ वैसे जुड़ेंगे। उसका हाथ और साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उसको अपना ड्रीम, जो डेस्टिनेशन है, वो उसको नहीं मिल जाता, वो मंजिल उसको नहीं मिल जाती। वो तरीका होना चाहिए। आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं, हम अपने अपने सिस्टम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोचिंग कह दीजिए इसको, अपन तो बोलते केयरिंग कर रहे हैं, पढ़ाई की केयरिंग करेंगे तो कैरियर जरूर बनेगा, पक्की बात है। अपने इंस्टीट्यूट का नाम ही रखा एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। सबसे पहले नाम एलन हमारे पापा का नाम। एलन हमारे पापा का नाम कैसे? लोग सोचते हैं एलन मतलब क्रिश्चियन लोग होंगे, लेकिन जब तिलक लगा देखते हैं बोलते यार क्रिश्चियन तो नहीं है।
एलन हमारे पापा का नाम लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी। लक्ष्मी नारायण को बोले तो L.N. माहेश्वरी, L.N. को एक साथ मिला के बोले तो प्रोनाउंस करके वर्ड बना एलन, और इसकी स्पेलिंग लिखें तो ALLEN एलन, ऐसा नोमेनक्लेचर हुआ। तो पापा का नाम है, उनसे तो ये शरीर मिला है, उनसे तो जान मिली है, तो उनकी आन बान शान कर जान हाजिर है, कोई कसर छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए पूरी अल्टीमेट पेरेंटल केयरिंग करते हैं, केयरिंग में नहीं पेरेंटल केयरिंग। और उसके बाद केरियर मतलब जो जुड़े, बच्चा जुड़े, साथी जुड़े, मिलकर अपना अपना किरदार 100% निभाए, जिसका जो पार्ट है उस किरदार में कसर नहीं छोड़े। इसलिए बस वहीं पे कह देते, कमिटमेंट कर लेते हैं कि बेटा तुम भी कमिटमेंट करो, हम भी करते हैं, और एक पेरेंट्स, एक ट्रायंगल का खेल चालू जाता है। पेरेंट्स का काम है कि बच्चों को लगातार मोटिवेट करे, कभी प्रेशराइज नहीं करे, कभी अपने बच्चे पे शक नहीं करे, दूसरे से कंपेयर नहीं करे। ये अगर पेरेंट्स ने कर दिया और बोला तेरे बेटा मेरा खून दौड़ रहा है, तो वैसा दौड़ेगा, ऐसा उसका मोमेंटम होगा, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। Nobody will stop him or her। और जहां बच्चे की बात है, बोले यार तेने सपना देखा है, अपना हो जाएगा, बस बचपन के गुण रख और अपना जो नेचर का साइकिल उसके साथ चलो, क्या कुछ नहीं हो सकता। ये है स्मार्ट स्टडी। हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्टनेस की प्लानिंग से करना है। फिर आता है सिस्टम जो एनवायरमेंट देता है। एनवायरमेंट क्या, हर बच्चे में जान है क्योंकि उसमें मुस्कान है, उसकी गजब की पावर उसके अंदर है। और रह जाती बात ये कि उसका जो हमारा बचपन है उसकी बातों को याद रख के एक बीज को पौधा बनाना है। आप जानते हैं एक बीज को अगर पौधा बनाना है तो उसको एक सफिशिएंट लाइट चाहिए, सफिशिएंट वाटर चाहिए और सफिशिएंट उसको खाद भी चाहिए। पूरा एक एनवायरनमेंट देता है सिस्टम। दौड़ना बच्चे को है लेकिन उसको दौड़ने के लिए उसमें जान भी होनी चाहिए। जब बीज में जान होगी तब वो पौधा बन पाएगा। तो हमारा सिस्टम जो है कोचिंग के हिसाब से हर जना अपने सिस्टम में जो अच्छी चीज लेके चल रहा है वो यहाँ बताए, दूसरे लोग उसको एडप्ट करें, तभी तो हम साथी बनेंगे, तभी तो हम बच्चों के लिए और अच्छा कर पाएंगे। अरे इतने 135 करोड़ की जनसंख्या का देश है और इसमें तो काफी पार्ट विलेज का है, रिमोट एरिया है, जहाँ बच्चों में प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको उभार के लाना है। अभी आरपी सिंह बोल गए टैलेंट को उभार लें। इस समय जो फेडरेशन के हिसाब से कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, मैं इनसे इतना सा कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया आपने काम किया, हम सबको इनको पहले साधुवाद धन्यवाद कांग्रेस करना चाहिए। और इनका वास्तव में मोरल पार्ट ये रहेगा कि जो हमारा रिमोट एरिया है वहां से बच्चों को, जो आज हमारी आवश्यकता है, जो टेक्नोलॉजी की एकदम जरूरत पड़ गई है, पेंडेमिक चालू हो गया, हुआ ऐसा बन गया, अब क्या होगा क्या होगा। अरे कई बार वो एग्जाम लेता है ऊपर वाला, त्रासदी आती है, वो परिवर्तन है, नेचर कुछ भी कर सकता है। सो व्हाट, इज ऑल राइट, वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल इज वेल। एक बार बोल के देखिए, हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमने अंदर से ऑल इज वेल बोला तो हमारे लिए चीज अनमोल हो जाएगी। हम बोलेंगे ठीक है सबके लिए एक जैसी चीज है, अब क्या करें, देखते इसमें सॉल्यूशन किया। ठीक है साहब, पहले ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, एकदम ऑनलाइन का नंबर आया, ऑनलाइन का आया, सबको अटपटा मैच तो हमेशा काटता है, लेकिन ऑनलाइन के अंदर टीचर को भी मन में तैयार होना है और बच्चे को भी तैयार होना है। और जब हम इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के हिसाब से जैसे जुड़े तो पहले लगा यार कितना लर्निंग में भी दिक्कत होगी, टीचिंग में दिक्कत होगी, लेकिन जब जुड़े तो लगा है तो माइंड, टाइम, एनर्जी, मनी सबकी सेविंग भी कर सकता है। और दिख रहा है वास्तव में, मैं एक टीचर की तरह मेरा लंबा सफर रहा है, मैंने देखा है कि अगर हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस का लगभग वही फीलिंग बच्चे को घर पे करा दे जहां वो पढ़ रहा है, क्योंकि अभी बाहर निकलने के लिए मना है, कोरोना, कोई रोड पे ना निकले, ये चल रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बोला था शुरू में, कोरोना मतलब कोई रोड पर ना निकले, घर से बाहर नहीं निकले, आवश्यकता नहीं तब तक घर से बाहर नहीं निकले। और ऐसे में बच्चे को तो मेन काम अपना पुरुषार्थ पढ़ाई का करना है, तो वो घर पे रह के ऐसे लगे उसको जैसे घर में उसको टीचर पढ़ा रहे हैं। तो वो सब तो आ गया वर्चुअल क्लास बोल रहे हैं, लेकिन क्यों वर्चुअल, जैसे लग रहा है बीच में मिरर है, एक डिलीवर टीचर एक स्टूडेंट है, दोनों के बीच में एक मिरर रख दिया, क्योंकि एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, लेकिन फीलिंग ऐसी जैसे घर में कोई टीचर पढ़ा रहा है। ये तो हो गया आपकी वो पूरी फीलिंग फिजिकल क्लास की। अब आती है टेक्नोलॉजी और उसके कुछ खास फीचर्स हैं, उनको भी ऐड करिए, सोने पे सुहागा हो जाएगा। पढ़ाई के ऐसा गजब का आपके पास ऐसे तरीके हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। अभी हम इस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, इसका नाम जूम है, ठीक है, मीटिंग प्लेटफॉर्म है, हम इसको टीचिंग में भी यूज कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर ढंग से, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि भाई हम स्वदेशी ऐसी चीज बनाए, मेड इन इंडिया, तो ऐसा बनाए कि लगे कि कुछ ऐसी चीज बनी जिसमें बच्चों को पढ़ाई बहुत आसान लगे, पढ़ाई में एंजॉय करें, थकान महसूस नहीं हो। हमेशा जैसे पिक्चर देखते हैं, थकान नहीं होती, 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं, बीच में इंटरवल नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बच्चों के लिए कुछ तरीका किया जाए। और इसमें फीचर्स होते हैं जिससे हमारा एनर्जी का भी, माइंड का, सबकी सेविंग हो सकती है। और आप देख रहे हैं जो चीज आपके कभी कुछ समझ में नहीं आती, आप क्लास में टीचर क्या करेगा, एग्जाम्पल दे देगा, 2 बार समझा देगा, 3 बार समझा देगा, लेकिन वही अगर वो सामने दिखा दे तो हमारी विजुअल पावर चालू हो जाएगी। ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी पावर है विजुअल पावर, क्योंकि पढ़ाई के लिए अगर कोई चीज बोली जाए जो हमारी देख
बोलकर, सुनकर, पढ़कर, अगर याद नहीं होती, समझ में नहीं आती, लेकिन उसको दिखा दिया जाए तो एक बार में याद होती है और गजब की समझ में आती है, फिर तो आप दूसरों को समझा दोगे, ऐसे समझ में आती है। पिक्चर का एग्जाम्पल सबको मालूम है, देखनी चाहिए होती है, कभी भूलते नहीं। पिक्चर देखे कभी ये नहीं सोचा कि जाके शॉर्ट नोट बनाए, ये नहीं सोचा कि यार कोई हमें डाउट बताने वाला कोई हो, कोई प्रॉब्लम काउंटर हो ना, अपने आप समझ में आती है। कैसी भी पिक्चर हो समझ में आती है। ये पिक्चर के ऊपर वाले ने गजब की हमें विजुअल पावर दी है, वो हम पावर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, हमारे टाइम को भी सेव कर सकता है। टीचर क्लास में डेरिवेशन कर रहा है, वहां ऑफलाइन क्लास में बच्चा बाद में कुछ कॉपी करेगा, नोट करेगा, दोनों जगह टाइम लगेगा। टीचर को बोर्ड से कुछ क्वेश्चन डिक्टेट करने, टीचर के तरफ से बच्चा साथ साथ नोट करे, टाइम लगेगा। आज टेक्नोलॉजी क्या है, खटाक से पीडीएफ फॉर्म में लाए, एक क्लिक किया, बोर्ड पे नजर आया, डाउनलोड का एक्शन दिया, बच्चे के पास पहुंचा। एक बार डेरिवेशन किया, डाउनलोड का ऑप्शन दिया, बच्चे के पास पहुंचा। तो टाइम की सेविंग भी है, माइंड की सेविंग भी है, एनर्जी की सेविंग भी है। तो अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो ये सोचना चाहिए यार, ये अच्छा है पैंडेमिक ने आके बताया कि हमें दूसरे तरीकों को मिलाकर एक कोऑर्डिनेशन दोनों में लाना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन का कॉम्बो लेके चलना चाहिए, और दोनों की अच्छी चीज को साथ लेके चलेंगे, पढ़ाई और अच्छी होगी। इसे कोशिश करें। एलन ने अभी अपना एक सिस्टम बनाया, एलन डिजिटल क्लास, देखिए उसके अंदर हम अभी ऐसा पहले कोशिश करी, जब पढ़ाई शो मस्ट गो ऑन, पढ़ाई चलनी चाहिए, एकदम तो बन नहीं जाएगी, लेकिन रखा टीम ने, टीम से क्या ड्रीम पूरा नहीं हो सकता, टीम वर्क होना चाहिए, और उसके साथ लगी और एक क्लास चालू करी, अब क्लासेस हो रही है। तो मेरा इतना सा कहना है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे को वैसे टाइम लिमिट 10 मिनट बोला है, लेकिन इतना सा कह रहा हूँ, यहाँ जितनी भी बात करी है, सार की बात यह है कि हम जब साथी बनकर इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो अपनी जो अच्छी चीज है उसको शेयर करें, बताएं। और बहुत बड़ा है बच्चों, इसमें मार्केटिंग होना चाहिए। बहुत बच्चे सपने देख के चल रहे हैं, लोग बोलते हैं बिजनेस बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केटिंग करें, नहीं, मार्केटिंग तो यहाँ से होती है। जब बच्चा अपना सपना पूरा करता है तो यहाँ से शब्द वर्ड ऑफ माउथ जो निकलते हैं वो गजब की खुशबू फैलाते हैं, बाकी सब कुछ नहीं। और अगर हम ऐसे चलेंगे तो निश्चित रूप से जो ये CFI, इनको मैं कंप्लीट करता हूँ लास्ट में, कि हमने बहुत अच्छा एक शुरुआत करी है, और जब आवश्यकता होगी हमेशा तैयार हैं। बच्चों के साथ बच्चे बन के हम चलें, बच्चों को बच्चा ही रहने दें, उसको आज में जीते रहने, उसको कभी अंडरस्टिमेट नहीं करें, दूसरे से कंपेयर नहीं करें। जो एग्जाम फाइनल डे है तब तक वो अपना मोमेंटम ना खोए। तो एक ही बात बोलना, पिक्चर अभी बाकी बेटा, पिक्चर अभी बाकी है। अगर ये लाइन बोलते रहेंगे तो कोई बच्चा कभी अपने पिक्चर में जो वो हीरो है, ये पिक्चर है, पिक्चर टॉप कौन करेगा, बच्चा करेगा, वो हीरो है, हीरोइन है, लड़की लड़का जो भी जेंडर कह दीजिए। पेरेंट्स कौन है, प्रोड्यूसर है, तो हमारा सिस्टर कौन है, डायरेक्टर है। अब बताइए पिक्चर में वास्तव में दिखता कौन है स्क्रीन पर, हीरो हीरोइन तो दिखते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो पीछे रहते पर्दे के, वो एक सपोर्ट के लिए हैं। लेकिन पिक्चर आराम से बच्चे की टॉप पर जाएगी निश्चित रूप से, अगर उससे हम ये बोलते रहे बेटा चिंता मत कर, पिक्चर अभी बाकी है, तुम जो चाहो कर सकते हो, बच्चा कुछ नहीं छोड़ेगा, कुछ बाकी नहीं छोड़ेगा, और फाइनल डे वो अपना बेस्ट करेगा, उसकी पिक्चर की हैप्पी एंडिंग होगी। थैंक यू वेरी मच, आप सबने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot, Mr. Brijesh Maheshwari. बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी बातें सुन के, और बिल्कुल आपने ग्रास रूट लेवल में उसको एक्सप्लेन किया, और सबको इससे आपका एक्सपीरियंस जो शेयर करने का मिला। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू ब्रजेश सर। मैं अभी CFI के वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस नितिन विजय सर, मोशन एजुकेशन कोटा के डायरेक्टर, उनको इनवाइट करना चाहूंगा, वो 2 शब्द रखें। नितिन सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आदरणीय श्री बंदेरू दत्तात्रेय जी जो शायद अभी एग्जिट कर गए हैं, उनका बहुत बहुत आदरणीय नतमस्तक होकर स्वागत है इसमें। RP सिंह साहब, विजय कुमार साहब, नवीन जी, जितने भी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, आप सबका भी मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि बहुत लंबी ट्रेल है, मैं खुद अध्यापक हूं और अध्यापक के पास शायद कंटेंट की कोई कमी नहीं होती, पर वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस के रूप में मैं अपनी कुछ बातें बहुत और बहुत जल्दी से कहूंगा, क्योंकि आज हमारे साथ वो लोग बैठे हैं शायद जिनको देखकर मैं खुद भी बड़ा हुआ हूं। आशीष सर शायद PM सर चले गए हैं मेरे हिसाब से, अगर उनको जल्दी हो तो वो पहले बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आशीष सर, PM सर को मैं एक बार कॉल कर लेता हूं, आप कंटिन्यू कर लीजिए। अच्छा PM सर, अगर आपको थोड़ा तुम स्क्रीन पे स्क्रॉल करोगे तो मैं दिख जाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, अगर आप अलाउ करें तो मैं फटाफट से अपनी बात कह देता हूं, फिर आप आ जाइएगा। प्लीज प्लीज कंप्लीट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी। बेसिकली ब्रजेश ने मोटिवेट करा, विजय सर ने भी अपने उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए बोला, बहुत सारी बातें हुई। थोड़ा सा मैं CFI की तरफ बोल दूं कि व्हाट इज द पर्पस जो हमने CFI बनाई है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जुड़ गए हैं, और पहली बात मेरे हिसाब से हम सब लोगों को
पूरी सीएफआई की गवर्निंग बॉडी जो नेशनल की है, उसमें जो 2 मेन किरदार हैं, कृष्णा सर और आशीष सर, उनके लिए एक बार तालियां बजा देनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों को एक साथ जोड़ने का और सूत्र में बांधने का, इन मोतियों को एक माला में पिरोने का काम जो आप दोनों ने करा है, मेरे हिसाब से उससे बेहतर काम कोई नहीं हो सकता। इस माला को और बड़ा करना है जब हम जेईई और नीट से बाहर निकलकर, चाहे सीए की कोचिंग, चाहे यूपीएससी की कोचिंग, चाहे और बहुत सारी कोचिंगों में हमें जाना है। पर मेरे हिसाब से पहले हम सब लोग कंसोलिडेट कर लें अपने आप को। फिर से मैं थोड़ा रफ्तार में बोलता हूँ, अध्यापक हैं, मेरी बात रफ्तार में समझ पाएंगे, समय का अभाव है और बहुत बड़े बड़े लोगों को हमें सुनना है, तो मैं थोड़ा रफ्तार में बोलता हूँ। हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स जिसके लिए हमने बनाया था, जाहिर सी बात, ओपनिंग ऑफ कोचिंग क्लासेस कोविड के बाद जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस से हम सभी गुजर रहे हैं। कल कोटा में अनुराग ठाकुर जी आए थे, जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे आए थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उनको भी हमने यही बात बोली। कल कोटा की कोचिंग इंस्टीट्यूट से सभी लोग 4-5-6 लोग सीएम से मिलने जा रहे हैं कल जयपुर 12 बजे, तब भी हम हमारी बात कहेंगे, सीएफआई को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रजेश सर शायद आप जा रहे हैं, नवीन सर जा रहे हैं, मेरी आप पीएम सर शायद होम सर जा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सीएफआई को भी अपन वहां पे बोल रहे हैं कि सीएफआई की तरफ से भी ये है। तो हम सब लोग प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी खुले, इसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं और जल्दी जल्दी काम करेंगे। तो आप सभी लोग अपने अपने स्टेट लेवल पे, स्टेट सेक्रेटरीज भी यहाँ पर हैं, स्टेट सेक्रेटरी से मैं कह दूं कि आपके बिना ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्थान अधूरा है। हम सभी लोगों ने स्टेट सेक्रेटरीज, स्टेट्स में पूरी एक हिरार्की सिस्टम बनाया है। इसके कार्यकर्ता या इसके जो सूत्र प्रणाली को बनाने वाले हैं वो जाहिर सी बात है गवर्निंग बॉडी है, बट स्टेट सेक्रेटरीज ने जो काम करा है मेरे हिसाब से काबिल तारीफ है। हम लोगों को शायद सुनने में छोटा लगे, पर 2500 कोचिंग को एक साथ जोड़ देना, और आपको जानकर खुशी होगी कि जेईई और नीट की कोचिंग को एक साथ जोड़ देना, ये मेरे को नहीं लगता किसी मिरेकल से कम है। हमारे लिए, इस संस्थान के लिए कोविड शायद एक हो सकता है पूरे विश्व के लिए त्रासदी हो, पर इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि शायद हमारे लिए ब्लेसिंग था, तो मैं उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखता हूं। जीएसटी हमारे लिए शॉर्ट टर्म गोल है, हम सभी लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। जब भी हम किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से मिले तो हम सभी लोग प्रयास करें, ये ना बोले, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ये ना बोले कि जीएसटी कम करी जाए, इस बात पर डटे रहें कि हमें शिक्षण संस्थाओं का दर्जा दिया जाए। हम स्कूल जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा हमने अपने परिश्रम से सिद्ध करा है कोचिंग संस्थानों में कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे के अपलिफ्टमेंट में बहुत ज्यादा देश के लिए योगदान कर रहे हैं, तो हमें शिक्षण संस्थाओं का दर्जा मिलना चाहिए। सब लोग अगर एक स्वर में हर ब्यूरोक्रेसी को, हर पॉलिटिशियन को ये कहेंगे तो हमारी बात आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर सुनी जाएगी। मेरा आप सभी लोगों से ये अनुरोध है। लॉन्ग टर्म विजन की अगर बात करें तो हम सब लोग जानते हैं कि हम सभी बड़ी जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उन्होंने ये बिल्ड करा है लास्ट एक डिकेड में कि जो कोचिंगों को ऐसा माना जाता था कि सिर्फ धंधा चलाते हैं, पैसे लूटने वाली मशीन है, हमने लास्ट 10 सालों में सिद्ध किया है कि नहीं, हम सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन नहीं बल्कि देश को प्रगति के पथ में और बच्चे के अपलिफ्टमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एकेडमिकली, ये हमने सिद्ध करा है। फिर भी शायद हम कहीं ना कहीं अभी इस बात में फेल हैं पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेसी को समझाने में। मेरे हिसाब से जब हम उन दोनों को समझा देंगे तो हम लोगों का परसेप्शन चेंज कर पाएंगे। सो द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द सीएफआई इज टू चेंज द परसेप्शन ऑफ द पीपल दैट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आर नॉट considered as an industry. They are playing the equally important role as educational institutes like schools or universities are playing. So we should be treated in the same level. I personally feel so. Second is helping poor students. हम इस बात का ध्यान में रखें, poor students को लाने के लिए CFI ने अभी पेडागोगी के साथ ऐप बनाई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चिन जी यहाँ पर उपलब्ध हैं। अर्चिन जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। 3000 ऐप बनाना, वो भी वाइट लेवल। मैं व्यक्तिगत रूप से टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्टेड रहता हूं, मैं जानता हूं ये बहुत बड़ा काम है टाइम और पैसे को लेकर। मेरे हिसाब से अर्चिन जी और पेडागोगी के लिए भी अपने को बहुत बहुत साधुवाद होना चाहिए। मेरा ये भी सब लोगों से अनुरोध रहेगा कि पुअर स्टूडेंट्स को आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर स्टूडेंट्स तक ये बात, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर स्टूडेंट्स, ये सीएफआई मेंबर्स की जिम्मेदारी होगी कि पुअर स्टूडेंट्स के लिए जो भी सीएफआई मुहैया करा रहा है वो वास्तविकता में पुअर तक पहुंचे, अननेसेसरी कोई बेनिफिट ना उठाए, अदरवाइज हमारे ही बिजनेसेस का कैनिबलाइजेशन हो सकता है। हम ये नहीं चाहते कि बिजनेसेस कैनिबलाइज हो, पर साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हम सामाजिक सरोकार में जो हमारा दायित्व है उसका भी हम भरपूर निर्वाह करें। पर सीएफआई के मेंबर्स की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखें कि जिस जगह तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, जिस जगह तक ये सुविधा पहुंचनी चाहिए, वहां तक पहुंचे। हमारा एक और ध्येय है लॉन्ग टर्म में कि हम फैसिलिटेटर बने एज ए सीएफआई, ऐसे टीचर्स के लिए, ऐसे एजुकेटर्स के लिए जो रूरल बैकग्राउंड्स में हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, पर शायद बड़ी बड़ी कोचिंगें भी वहां तक नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ बिजनेस फिजिबिलिटी, पर उन एजुकेटर्स को फैसिलिटेटर के रूप में प्रोवाइड कराना, उनको बेसिक नॉलेज शेयरिंग करना, बेसिक टेक्नोलॉजी शेयर करना, उनके पास बेसिक कंटेंट पहुंचना फ्री माध्यम से, ताकि वो रूरल बैकग्राउंड को भी अपलिफ्ट कर सके।
अगर बात करें तो फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा एक ध्येय लॉन्ग टर्म में ये भी है, जो भी गवर्निंग बॉडीज के मेंबर्स हैं, स्टेट सेक्रेटरीज हैं, कि समय के साथ जब हम कंसोलिडेट कर लें तो हम अपने और भी सेगमेंट्स को, चाहे वो सीए हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो अदर कोचिंग्स हो, चाहे बोर्ड लेवल की कोचिंग्स हो, क्योंकि अभी मेजरली हम लोग जेईई और नीट के ही लोग इसमें ज्यादा हैं, उनको भी अपन इसमें शामिल करने का प्रयास करें। फिर से एक बार मैंने अपनी बात शायद थोड़ी रफ्तार में कही, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व यहां पर हैं जिनको हम सबको सुनना है, पर मैं आशा करता हूं मैंने अपनी सभी बात कही होगी। फिर से पेडागॉगी, पूरी गवर्निंग बॉडी, स्टेट सेक्रेटरीज, जितने भी गेस्ट ऑफ ऑनर आए हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और गवर्निंग बॉडी का मुझे समय देने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू नितिन सर। मैं अभी CFI नेशनल के ऑनररी एडवाइजर प्रमोद माहेश्वरी जी, जो कैरियर पॉइंट के डायरेक्टर भी हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा वो कुछ शब्द कहें और मार्गदर्शन करें हम लोग। Good morning, everyone. I think it's now good afternoon, so it's already past 12. So good afternoon, everyone. I will not take much of your time because आप सब लोग इस क्षेत्र में बहुत काम करते हैं और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप सबके पास है, तो मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कभी भी आपको कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर टीचर्स एक्चुअली, and you understand, you've been interacting with the students day in day out, and you are very very serious about the careers of the students who are actually opting any kind of services from you. I spent more than 27 years in this industry, और 27 साल में मैंने इसका रूप बनते हुए, और आज क्योंकि आप सब लोग हैं और मैं थोड़ा सा उस चीज को आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बिगड़ते हुए देख रहा हूँ। आप मेरी बात को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जैसे नितिन ने बोला कि परसेप्शन एक इशू है, परसेप्शन हमारा अच्छा था, हमारा बुरा था। जब मैंने शुरू करा तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन का परसेप्शन था कि, और मैं केवल बात कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव में ही करूंगा, मैं इसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा, और मैं शायद वो शेयर करूंगा आपसे जो हो सकता है कि आप में से जो यंग लोग हो उनको तो शायद पता ना हो, परंतु जो मेरे साथ के कंटेम्प्रेरी हैं, जो मेरी तरह बूढ़े हो चुके हैं, उनको जरूर पता होगा कि जब मैंने शुरू करा था 93 में, तो उस टाइम पर कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एक इमेज हुआ करता था देश में कि 10वीं फेल BA पास करें सीधे, इस तरह का एक परसेप्शन बना हुआ होता था। और इस परसेप्शन में ये लगता था कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक सिंडिकेट है जो बच्चों को किसी तरीके से किसी भी अर्जी फर्जी यूनिवर्सिटी से पास कराने का काम करते हैं। एंड उसको चेंज करने में कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो शुरुआत में आए और उनके साथ जो बहुत सारे लोग जुड़े, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी और एक परसेप्शन बिल्ड होने लगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक्चुअली कंट्रीब्यूट in academics. They help a student, they sharpen their talents and they take them to the desired level. The best part, and perhaps the best contribution which coaching institutions have done in past and even today doing, is bringing the student from rural or semi-urban background and helping them to get into IITs. Because I got in IIT in 1989, and during my time in 1989, most of the students in IITs were from either metros or from some townships. Township where all the people were educated. So जैसे भिलाई से आ रहे हैं, मान लीजिए जमशेदपुर से आ रहे हैं, भोपाल से आ रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे शहर से बच्चा जा रहा है जहां पर वो इकोसिस्टम नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने वो बहुत बड़ा काम किया और मुझे लगता है कि हमें ये हाईलाइट करना चाहिए अपने कम्युनिकेशन में कि दिस काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन द कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैव डन, क्योंकि वो बच्चा टैलेंटेड था, छोटे शहर में था, उसको कोचिंग इंस्टीट्यूशन निकाल के लेकर आया और उसको मोटिवेट करके डायरेक्शन दिया। टैलेंट उसमें था, बट ये ग्रो करता गया, सेगमेंट ग्रो करता है तो उसके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, उसमें अच्छी चीजें भी होती हैं और बुरी चीजें भी होती हैं, वो हम सब समझते हैं। I will not touch upon that point, but yes, gradually we failed to retain the respect in society and people's mind. That's a challenge which Nitin very critically highlighted कि perception change करना चाहिए, because if you fail to change perception, you will not able to achieve any of the goal. जो अभी नितिन ने बोला वो एक भी गोल अचीव नहीं कर सकते हम, चाहे वो GST से लेकर हो, क्योंकि कोई मानता ही नहीं है कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आप कितना भी बोल दीजिए, nobody is actually ready to understand this. हम कितना भी बोल दें इस बात को कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, we teach student, everybody say no, you don't teach student, आप तो करते नहीं, पढ़ाते नहीं, जबकि हम पढ़ाते हैं एक्चुअली। फैक्ट ये कि हम पढ़ाते हैं पर तो कोई तैयार नहीं मानने को इसको, क्योंकि जो
आउटलुक है, जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन ऐसा ही है. एंड इट इज नॉट ओनली इन ब्यूरोक्रेट्स माइंड एंड पॉलिटिशियंस माइंड, रादर आई वुड से आई बीन क्लोजली इंटरेक्टेड विद मेनी पॉलिटिशियंस एंड आई फील दैट पॉलिटिशियंस हैव क्लियर कि आप पढ़ाते हैं, उनको पता है कि आप पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी सिचुएशन जो काफी पैथेटिक हो चुकी है. एंड इफ देयर आर नॉट कोचिंग इंस्टीट्यूशन हु विल एक्चुअली फिल द लर्निंग गैप व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड बाय द एजुकेशन सिस्टम ओवर द इयर्स. इसको एजुकेशन सिस्टम इज you know, I don't want to criticize anything on the platform, but आप सब जानते हैं कि इसीलिए तो हम सब लोग हैं कि एजुकेशन स्कूल सिस्टम में नहीं होता है. अगर वहीं पढ़ा दिया जाए तो हमारे पास क्यों आएगा बच्चा. ये सब समझते हैं, परंतु कोई इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है. मुझे लगता है कि क्यूमुलेटिवली CFI का एक गोल होना चाहिए और वो है आपका, और आई एम हैप्पी टू नो दैट कि वी शुड चेंज द परसेप्शन, एंड परसेप्शन कैन बी चेंज बाय नॉट टीचिंग ओनली, बाय बिकमिंग अ गाइड एंड मेंटर. We have to mentor, we have to be very, very truthful to our students. Those who are coming to us, we need to be very critical in respect to our communication, in respect to our promise, in respect to helping them. Because now world has amazing opportunity. It is not all, केवल IT और मेडिकल ही नहीं है. अगर आप अपनी क्लास में से, मतलब आप अपने इंस्टीट्यूशन में अगर 10 बच्चों को जिनको लगता है कि नहीं you can't do it, और अगर आप गाइड कर देंगे, let me tell you one thing, वो बच्चे आपको जिंदगी भर याद रखेंगे और वो परसेप्शन चेंज करेंगे. बिकॉज एक्सपीरियंस से परसेप्शन चेंज होता है. परसेप्शन हमारे कहने से चेंज नहीं होता. पीपल, व्हाटएवर द पीपल विल एक्सपीरियंस, वो चेंज करेंगे परसेप्शन को. किसी जमाने में हम बोल दिया करते थे बच्चों से कि भाई तेरे से बाबा IT नहीं बनेगा, तू जा यार, तो क्यों मेहनत कर रहा है, गो फॉर PET. शिशिर वगैरह मेरे साथ के कंटेम्प्रेरी हैं, उनको पता है कि बोल दिया जाता था बच्चों को क्लास में. हम नहीं बोलते क्योंकि सिचुएशंस बदल गई हैं. हमें शायद उस तरह का एक वापस इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम वापस उसी लेवल पर पहुंच पाएंगे. और ऐसा नहीं कि ये मैं अपने फोरम में बोल रहा हूँ, विद इन फोरम में आपसे बात कर रहा हूँ कि हमें परसेप्शन हमने बिल्ड कर लिया. लेट मी टेल यू, हमारा जो करियर पाथ है, हमारा जो गोल है, it's not all about money, it's all about satisfaction, it's all about what you have achieved in your life. Because at the end of the day, आपको कभी ना कभी जाकर तो सोचना ही पड़ेगा कि व्हाट आई हैव गेन इन माय लाइफ, ऑब्वियसली बियॉन्ड मनी. आज ही सुबह मेरे पास एक अच्छा व्हाट्सएप आया था, मैं आपको 1 सेकंड लूंगा. हालांकि मैं इस तरह की शेर शायरी करता नहीं बात में, परंतु मुझे एक इतना बढ़िया व्हाट्सएप आया कि मैं आपको सुनाना जरूर पसंद. आपके पास भी आ गया हो, क्योंकि आज तो सबके पास जाता है आजकल, ऐसा नहीं अकेले मेरे पास ही आया है. परंतु ये था कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने इश्क पैसे और फिर खुदा खुदा. तो बाद में खुदा खुदा तो हमारा सबका होना ही है, क्योंकि हमारा पैसा हो गया, इश्क हो गया, अब खुदा खुदा तो हमें करना ही है. बाद में जाके हमें पीछे तो देखना ही पड़ेगा कोई ना कोई दिन जाकर कि व्हाट वी हैव डन इन आवर लाइफ. एंड सी, वी आर एक्चुअली नॉट ओनली इंटरेक्टिंग विद आवर फैमिलीज. हम बच्चों की बहुत सारी फैमिलीज के साथ काम करते हैं, तो हमारा रोल जो है डॉक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो 2 ही बातें होती हैं, या तो बच जाएगा या खत्म हो जाएगा. हम ऑपरेशन करते हैं तो खत्म तो कभी कोई होता नहीं है, परंतु हम उसको जिंदा मार देते हैं. हम उसको जिंदा मार देते तो उस अकेले की हत्या नहीं होती है, उसके साथ उसके परिवार के जितने भी लोग जुड़े होते हैं उन सबकी हम हत्या कर देते हैं. हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होता है जब हम किसी बच्चे के साथ उसके करियर को डिजाइन कर रहे होते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड आवर ओन सेल्फ objective to achieve whatever we want to achieve in our life. It's our community, जो आपको objective होना चाहिए. Let's take the youth to the right destination so that he can survive in the competitive environment with his family happily and can contribute to the nation. I won't take much of your time, so thank you very much for giving me opportunity. And कभी आपसे ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर बात करेंगे. आज बहुत सारे लोग हैं तो I haven't taken time. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your great words. Thank you, Pramod ji. So now let me welcome Praveen Tyagi sir, who is one of the very renowned teacher, a very big educator, और मुंबई से शुरू होके उन्होंने पूरी कंट्री में जो कंट्रीब्यूशन किया है, एडुफन और जो पेस IITians के डायरेक्टर है, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ CFI में. अब वो अपने कुछ विचार व्यक्त करें. थैंक यू सो मच. पहले तो मैं सभी लोगों का जिन्होंने CFI के लिए इनिशिएटिव लिया है और सभी लोगों को जोड़ा है, उनको धन्यवाद कहूँगा. और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है. हम सब लोग
एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत है टू ब्रिंग चेंज, बदलाव लाने की, इम्पैक्ट डालने की बहुत बड़ी ताकत है। अभी शायद अब जिन लोगों ने CFI को क्रिएट किया है, शायद उन लोगों को भी यह अंदाजा नहीं होगा कि ये ताकत कितना कंस्ट्रक्टिव और कितना पॉजिटिव काम कर सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों को जोड़ा। और लखनऊ काली प्रसाद जी, म्यूट योर फोन प्लीज। प्रवीण सर कंटिन्यू प्लीज। दूसरा, इस देश में मेरिट को, जो बच्चे मेधावी हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले और किसी भी रीजन से किसी भी तरह का अभाव फेस कर रहे हैं, उन बच्चों से हम सभी लोगों को, मैंने आज तक अपना भी मैं जानता हूं और मैंने औरों का भी देखा है, वो विजन, वो एक सोच सभी के अंदर है, हम सभी के अंदर है कि हम उन बच्चों की मदद करना चाहते हैं। और जिस वक्त इस देश में मेरिट को एक्नॉलेज करके पूजा जाएगा, जब उस मेरिट को उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा कोचिंग क्लास की फ़ी और ये सब, और उन बच्चों में टैलेंट है और उन बच्चों को अगर वो क्वालिटी एजुकेशन मिले तो वो एक बहुत बड़ा काम होगा। और ये जो आपका इनिशिएटिव है साथी हाथ बढ़ाना, आई एम ऑल इन फॉर इट। और जो भी हम सबसे बेस्ट हो सकता है वो करते हैं। तीसरा, हम सभी के पास अलग अलग टाइप की एनर्जीज, ताकतें, रिसोर्सेज हैं, जिन्हें अगर हम एक फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से एक साथ जोड़ना शुरू करेंगे तो वो इस देश की HRD मिनिस्ट्री का एक पैरेलल सॉल्यूशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इस देश में एजुकेशन में, जैसे अभी आप लोगों ने फ्रस्ट्रेशन जताई, प्रमोद माहेश्वरी सर ने भी, कि द वे दे लुक एट अस, हमें परसेप्शन चेंज करने से ज्यादा मुझे लगता है हमें अच्छे काम करने शुरू कर देने चाहिए। हमें 1000 बच्चों को पढ़ा के जिस वक्त हम उन बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूशंस में प्लेस करेंगे और जब वो बच्चे पास होके बाहर निकलेंगे, वो एक ऐसा चेन रिएक्शन है कि परसेप्शन तो छोड़िए, देश ही बदल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द गुड वर्क। इसमें मेरा अपना, अब बाकी तो सब सेम इंडस्ट्री से है, हर इशू हर मुद्दे को समझते हैं, तो मैं रिपीट करूंगा तो बोरिंग हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि मेरे पास एक ऐप है जिसको स्टेप ऐप के नाम से हमने लॉन्च किया है, और अगर कहीं भी वो किसी भी बच्चे के काम आ सकती है, या आप कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ किसी भी वे में आप लोग उसे यूज करना चाहें, आई विल बी रेडी टू प्रोवाइड इट फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द अंडर प्रिविलेज मेरिटोरियस किड्स। एक लास्ट चीज और मैं कहूंगा जाते जाते कि हम सभी लोगों को एक साथ जुड़ने में एक अलग ही फिलॉसफी है, वो एक अलग विचारधारा है, वो एक अलग, दैट्स नॉट एन एजेंडा कि मैं पेस के बारे में यहाँ पे बात करूं और बताऊं कि पेस क्या है या स्टेप अप क्या है। ये एक अलग पर्पस है, और क्योंकि मैंने वो पर्पस फील किया, इसीलिए मैं तुरंत, जैसे ही आशीष जी ने मेरे से रिक्वेस्ट की, मैं एग्री हो गया और मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। जब भी आपको जिस चीज में जहां जरूरत होगी या जहां मेरी कोई रिसोर्स होगी, अभी मेरे दिमाग में एक थॉट सुबह से थी कि अगली सेशन आई विल डिस्कस इट विद द ऑर्गेनाइजर्स कि भाई HRD मिनिस्टर को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। और ये ट्रू है कि एक गलत परसेप्शन कोचिंग इंडस्ट्री का बना हुआ है, स्पेशली जो काम हम लोग कर रहे हैं, देश की बेस्ट ब्रेन्स को ट्रेन करके उन्हें ओलंपियाड्स में मेडल्स और IIT में टॉप परफॉर्मर्स बनाना। और ये बच्चे देश को आगे चल के आगे यही लेके जाएंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कंट्रीब्यूशन एट द टॉप एंड हम सभी लोग कर रहे हैं। एक सही भावना के साथ, ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। आई
am grateful that I am a part of this body. Thank you so much. Keep up the good work. I am with you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. thank you, Praveen sir, for your kind words. Or yes, Step App can really help the CFI. And now I really oblige to welcome Archin sir. Archin sir, आप अपने कुछ विचार व्यक्त करें CFI के प्रति. Hello. Thank you, Prakash ji. I think it was wonderful to hear everybody, the distinguished panelists that we have, and all the people that have been speaking so far, and everyone who's going to talk after this. I think the mission is something which is very critical, and that's what lured kind of drew us towards CFI. Everyone has discussed the importance of education, importance of coaching. So I will not repeat that. But I really wanted to talk about one of the cornerstones that CFI has, and that we have and that we believe in, is enabling and empowering students and institutions. That's very, very critical. And pedagogy is committed in taking that role forward with CFI of uplifting not just the coaching industries, but also ensuring that education is democratized, given and delivered to students anywhere in any part of the country. Just a little bit about me, because you might not know me. मैं गुजरात से हूँ, born and raised in Gujarat and Ahmedabad, and I moved to US after 12th, lived there for 8 years, and I was studying law and had the good fortune of experiences both the sides of the aisle when it came to education. I had a very comfortable life over there, and I left it to come here and build something that can impact lives of millions of students in our country. We always hear these news that there are brilliant kids who leave our country, go and do wonders. And as a country, we are unable to kind of unleash the full potential of the students, primarily because of inequality in the opportunity or access. And that's something we really want to change. So at Pedagogy, we really want to reduce that gap and make sure that students have access to world-class education, and they don't have to spend a lot of money to do that. CFI is an initiative with the same mission, and we're extremely, extremely humbled and honored to be associated. Talking about accessibility, I would also like to mention that Nitin sir from Motion has pledged to give his videos and make them available for free to all the kids, all Hindi medium kids. And we know what kind of an effort, not just in time, it goes to create videos and quality content to make that accessible to all the kids. I think it's the first step forward in a very, very good direction, helps with our mission of making education available to all the kids who want to study. And we are committed to making sure that, with use of technology and all the other tools at our disposal, no child should be left behind. If a student wants to study, the lack of resources or money can never be the reason in our country where a student doesn't get to study. I think it's our responsibility and our moral obligation as an institution to make sure that that doesn't happen in our country. So I'd just like to end by saying that let us all pledge that, through CFI and through Pedagogy and through everyone associated, we pledge to enrich the lives of students and teachers and propagate equality in education. So Sathi Hath Badhana, and thank you. Thanks, Sachin. Thanks. मैं इनवाइट करना चाहता हूँ अब वैभव सर को। और CFI के प्लेटफॉर्म पे जब मैं उनसे मिला तो बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस था।
उन्होंने जो इस प्रोजेक्ट को बच्चों के लिए लाने के लिए जो पहला ऑब्जेक्ट तैयार किया था वो वैभव सर थे। तो मैं एक बार उन्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज वैभव सर आप आएं और अपने विचारों से हम सबको बताएं। Thank you, Ajay sir. I feel privileged to get this opportunity to speak here along with such respectable dignitaries. Very, very good afternoon to all. I'll keep it very brief. Speaking on the vision of CFI, CFI has at least as many visions as the number of speakers today. So at our endeavor in Pune, we have believed in ethical practices, whether it's about sharing the contact numbers of all our JEE advanced qualified students, or whether it's about keeping fair HR practices for all our employees. So for me, CFI was an opportunity to encourage all coaching institutes to follow high morals and thus increasing the respect of the coaching fraternity in general. But undoubtedly, I respect all other visions as well. They are equally important, if not more. And with time, we at CFI will be able to prioritize and show concrete results. So to all educators who feel skeptical, doubtful about these ideal vision statements, here are the few lines from a poem by Shri Anand Param. कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा, कोशिशें जारी रख कोशिशें कुछ कर गुजरने की, जो आज थमा सा है कल चल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। ये CFI का जो पौधा है ये जरूर से पेड़ बनेगा। So let us keep striving to do great work through this amazing platform CFI. Thank you everyone. भी लोगों ने इतनी शेरो शायरी की है और रियल शायर मैं हूँ यहाँ। मुझे ये लगता है कि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। कभी सेपरेट करेंगे वेब में। जी, मैं ओरिजिनल लिखता हूँ। अरे वाह सर, वेरी नाइस सर। दो लाइनें सुना देता हूँ। आपका ओरिजिनल सुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए। अभी ये कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है सर, आपका ओरिजिनल सुन सकते हैं हम सब लोग। सुन सकते हैं, बिल्कुल। तो कोचिंग इंडस्ट्री का तो ये हाल है। दो लाइनें हो जाए सर। कोचिंग इंडस्ट्री कह रही है ये शेर कि ये जो तुम मेरा हाल पूछते हो, बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछते हो। कोचिंग इंडस्ट्री का जो परसेप्शन है, कोचिंग इंडस्ट्री पे जो GST लगाया गया है, मेरा ही एक दोस्त है, अंडर सेक्रेटरी था उस वक्त, IRS है, पंकज सिंह स्कूल का फ्रेंड है, और ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग दिस सर्विस टैक्स में नेट में आई थी कोचिंग इंडस्ट्री कुछ 17-18 साल पहले। मैं उसे कहता रहता हूँ कि भाई तुम मेरे से जल के तूने ये सब किया है। उसका यही कहना होता है कि कोचिंग इंडस्ट्री वाले पैसा ये वो। मुझे ये बता दीजिए कि कौन से गरीब का एक सिंगल स्कूल है इस देश में, या कोई कौन से गरीब who is owning a single school and not rich, जबकि they are doing charity, they are allotted land, they are given subsidized salaries, हर चीज की जा रही है, बट कहीं ना कहीं हाँ वो कम्युनिकेशन का ही खेल है। वी नीड टू सेट द परसेप्शंस राइट, जैसे महेश्वरी सर ने कहा, इसने सॉरी शिशिर जी ने कहा। तो कहीं ना कहीं अच्छा इनिशिएटिव लिया है सभी लोगों ने, और सब लोग जुड़ के एक साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कहानी आगे जाएगी। अच्छा होगा। हमने जो रेजोल्यूशन अभी डिक्लेयर किया वो आई स्ट्रांगली बिलीव इन कि जब इतने सारे दिग्गज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक दिशा में सोचेंगे
और कुछ अच्छा करने की सोचें। हमारा जो पर्पस है वो हमें आगे ले जाएगा, वही हमें बाइंड करके लेके चलेगा। तो ये जो आपका साथी हाथ बढ़ाना है, ये बहुत ही नोबल पर्पस है, और इसमें हम सब लोग जुड़ के जब काम करेंगे बहुत अच्छा होगा सभी के लिए, इंडस्ट्री के लिए। Thank you, Praveen sir. Thank you so much. Next upon I call Mr. Ashish Vishnu from Kanpur, like one of the very famous educators. Yes, Ashish I sir, can hear you. Thank you. sir, are you audible? Can you hear me? Yes. Yes, Ashish. Sir, most welcome to the platform of CFI. So, a few words from your side. Sir, you are not audible. अनम्यूट करें. Previously, you were audible. You're audible. Sorry, can you hear me? Okay. So, very good afternoon to all of you. My immense pleasure to be a part of this forum. I genuinely think that coaching industry has really contributed a lot in the overall development of this country. To my mind, the biggest contribution of coaching industry in this country is that it has made high quality teaching available to every single corner of this country. See, back in 1990s when I got through IIT, I realized that all of my classmates, in fact, all the students over there were just from the main cities or maybe some main townships. But now with the advent and flourishment of all these coachings, we realize that even a student from a very remote area or from a small village is able to make into IIT, or maybe for that matter, some other top institution. So from my personal experience, I've seen their lives completely change. You know, and in fact, for their generations to come, the life has changed. So it's kind of a complete transformation for an entire family, which I believe is something very big that a coaching contributes. Also, I would also like to congratulate CFI for starting this Sati Hanapalana initiative. I think it's very important that the underprivileged, the poor section of society is being given equal opportunity. So I want to promise from my side that whenever it is required, to the best of my capacity, I'll always be available to help and put whatever step forward I can take. And also, I would like to congratulate CFI for getting everyone under one roof. I think this is going to make this coaching industry a little more respectable and a more organized industry as well. I won't take long because there are so many people who are yet to speak and I would like to hear them. So in the end, I just want to say that I'm a part of it and I would help the poor section or underprivileged to the best of my capacity. Thank you very much. Okay, enjoy the day. Thank you. Thank you, Ashish sir. Thank you for your kind words. Thank you so much, sir. Next, I'll call upon Mishra sir with me. SR Mishra sir. Just have a few words from your side, sir. आपका आशीर्वाद चाहिए सर. सर अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए. थैंक यू आशीष, और सभी को इतने बड़े डाइस पे बैठे हुए दिग्गजों को मेरा नमस्कार, है ना. और पेंडेमिक है, मैं 2-3 बातें कहूंगा, 2 to 3 points. Pandemic has caused the disruption in the classroom coaching, and that is the opportunity for the innovation. In spite of so many troubles, now the coaching is online, and I appreciate all the teachers and institute who adopted the online system. ठीक है, ओपन है ना आशीष? यस, सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है. ओके. जब एक रास्ता बंद होता है
तो कई और हजार रास्ते खुलते हैं, जहां चाह वहां राह। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग फैटर्निटी ने इस नए सिस्टम को अडॉप्ट किया, बोल दिया ना आशीष ने, हाँ, अडॉप्ट किया, वो काबिले तारीफ है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि नॉलेज जो एक फ्रेश वेजिटेबल की तरह है, अगर उसको कुक किया जाए तो विजडम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमें कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम में और इस सिस्टम में कुछ और भी इंप्रूव करने की जरूरत है तो हमें करना चाहिए। मैं कुछ बातें, जैसे अब बहुत सारे स्पीकर्स ने ये बातें कही कि साथी हाथ बढ़ाना, ये जो सोशल इनिशिएटिव CFI और पेडगोगी का है, इसमें आशीष गंभीर जी, नारायण सर और कृष्ण चैतन्य जी एंड अदर मेंबर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया है, मुझे एक इंटरव्यू ललन टॉप में सौरभ द्विवेदी के साथ प्रकाश झा जी का याद आता है। उन्होंने परीक्षा मूवी के लिए जो इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये बताया कि जब सुपर 30 जो बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, उसके फाउंडर्स में से आनंद कुमार जी के साथ जो DGP अभ्यानंद जी थे, उनकी जब जहानाबाद में पोस्टिंग थी तो वो नक्सलाइट के बच्चों को मिला करते थे। उन बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन होता था और फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस का जिस तरह से, जिस बेहतरीन तरीके से वो जवाब दिया करते थे, उससे उन्हें सुपर 30 जैसे बढ़िया इंस्टीट्यूट में को बनाने में या उसके साथ सहयोग करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने एक और स्टोरी भी कोट किया कि 2 रिक्शा चालक आपस में बात कर रहे थे। एक रिक्शा चालक ने कहा मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, तो दूसरे रिक्शा चालक ने कहा जरूर पढ़ाओ, अगर थोड़ा सा अंग्रेजी सीख जाएगा तो ई रिक्शा चलाएगा। कहने का मतलब है जिसका जो कैलिबर है उसी कैलिबर से थिंक करता है। अभ्यानंद जी ने सुपर 30 के लिए उन बच्चों को कैलिबर को देखते हुए ऐसे प्रोग्राम बनाए। आज भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आते हैं। जिस तरह से इस देश की पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज कंट्री, स्कूल्स इतने हाई लेवल के विलेजेस में और रूरल एरियाज में नहीं है। कोई स्कूल पढ़ने शायद शहरों में नहीं जाता है, लेकिन कोचिंग करने के लिए दिल्ली, हैदराबाद, कोटा, मद्रास, बड़ौदा, अहमदाबाद और डिफरेंट, मुंबई और डिफरेंट शहरों में बच्चे कूच करते हैं। और उसमें से बहुत से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और इवन गरीब से गरीब लोगों के बच्चे IITs, NITs, मेडिकल कॉलेजेस और डिफरेंट प्रोग्राम में सेलेक्ट होते हैं। और सेलेक्ट होकर के उन गरीब बच्चों की जो स्टोरी है, वो कंट्री के वो टैलेंट को हार्नेसिंग करने में मदद करते हैं। टैलेंट का हार्नेसिंग होता है, ह्यूमन रिसोर्सेस का कंट्री के डेवलपमेंट, नेशनल बिल्डिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद होती है। जैसा कि कई लोगों ने, कई स्पीकर्स ने, प्रीवियस स्पीकर्स ने बात किया कंसेप्ट परसेप्शंस चेंज करने की बात, तो बहुत सारे परसेप्शंस, कोचिंग में क्या रिफॉर्म किए जाएं, CFI उसमें क्या मदद कर सकता है, ये सारी बातें हुई। मैं तो सिर्फ एक बात करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जो भी बहुत सारे अच्छे कंट्रीज में, कई देशों में जो टीचर्स का रिस्पेक्ट है, टीचिंग और रिसर्च में जो लोग काम करते हैं उनका जो सम्मान है, वो सम्मान हमारे देश में इवन दो स्कूल टीचर, कॉलेज प्रोफेसर्स, IIT प्रोफेसर्स का भी नहीं है, जो इस कंट्री में ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट और अदर्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स का है। तो ऑब्वियसली हमारा जो सेक्टर जो हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, उस सेक्टर्स में टीचर को सम्मान मिलना बहुत असंभव है। इवन दो हमारे टीचर्स जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अब ये कभी मत समझें कि सारे टीचर्स का सम्मान नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग डायस पे बैठे हुए लोग हैं जो जिन्होंने अपना नाम कंट्री में बहुत ऊपर लेवल पर तक बनाया है, लेकिन आप लोगों के अलावा भी इस इंडस्ट्री में काम करने वाले 20,000 से 50,000 लोग हो सकते हैं जिनको वो सम्मान और वो मुकाम हासिल नहीं हुआ है। अगर वो मुकाम आपको हासिल करना होता है तो आपको टीचर से बिजनेसमैन बनना पड़ता है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना पड़ता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो सम्मान दिलाने के लिए CFI और जो टीचिंग फैटर्निटी के लोग हैं और जो कोचिंग के बड़े महारथी लोग हैं, वो टीचर्स को सम्मान दिलाने में मदद जरूर करें। एक बात मैं कोट करना चाहूंगा, जब कोटा, हैदराबाद बहुत बड़े सेंटर नहीं हुआ करते थे कोचिंग में, 90s के बिगनिंग की बात मैं कर रहा हूं, उस समय दिल्ली कोचिंग का बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, जिसमें सचदेवा, DPCC जैसे बहुत बड़े कॉलेजेस होते थे, जिसमें PT, PMT, ओपन स्कूल और बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स चला करके 50-50 DPCC में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बराबर लड़कियों का एक यूनिवर्सिटी जैसा क्लासेस चला करता था पूसा रोड में। तो मुझे याद है कि बिहार से, यूपी से, गोरखपुर से एक ट्रेन आती थी, बिहार से पूरी 4-4 ट्रेन, हिमाचल
जम्मू कश्मीर, पंजाब से लोग सारे पढ़ने आते थे, पूरा नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल। तो उस समय आईटी जेई का कोई ऐसा माहौल नहीं हुआ करता था। लोगों को अगर आईटी करना है, कोई बोर्ड की कोचिंग करे, पीटी की, पीएमटी की, तो इन कॉलेजेस में जाना है, अदरवाइज आईटी की कोचिंग करना है तो अग्रवाल कोर्सेज ज्वाइन करना है या ब्रिलियंट का वाईजी फाइल ज्वाइन करना है। ये बेसिक ट्रेंड हुआ करता था। लेकिन जो हमारे सीएफआई के प्रेसिडेंट हैं एमआर नारायणन साहब, मुझे याद है, मैं इस बात को इसलिए कोट कर रहा हूं कि जब वो सेक्टर हाईली अनऑर्गेनाइज था तो उन्होंने कई सेंटर, मल्टीपल सेंटर दिल्ली में आईटी जेई के सेंटर्स खोले, मद्रास में सेंटर खोला, मुंबई में सेंटर खोला, कलकत्ता में खोला, बंगलौर में खोला, हैदराबाद में खोला, और उन्होंने टीचर्स को प्रोफेशनली ट्रेंड क्वालिफाइड लोगों को आईटी, एनआईटी और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से लिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और उनको ट्रेन किया और आईटी जेई का एक स्टैंडर्ड कायम किया। उन्होंने रातों रात टीचर को उन्होंने जमीन से उठा के हवाई जहाजों में चलना सिखाया। तो मैं ये कहना चाहूंगा नारायण साहब आपका खास तौर पे, क्योंकि पर्सनली मैं उस समय दिल्ली में था, हो सकता आप मुझे न जानते रहे हो, लेकिन मैं आपको जानता रहा हूँ कि जो कंट्रीब्यूशन आपने उस समय किया वो काबिल तारीफ है। आज आप सीएफआई को लीड कर रहे हैं और आपकी टीम बहुत यंग लोगों की है, जैसे वैभव अग्निवाल जी, नितिन विजय जी, कृष्ण चैतन्य जी, आशीष गंभीर जी। मैं आशीष को पर्सनली जानता हूँ, इज ए वेरी नाइस बॉय। जब चाहे ट्रेडिशनल कोचिंग हो, चाहे वर्टिकल कोचिंग हो, चाहे ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म हो, जहां भी उसने काम किया, कोचिंग इंडस्ट्री को हेल्प किया, टीचर्स को हेल्प किया, वही उसका नजरिया है। और मैं स्पेशली कृष्ण चैतन्य जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। मैं श्योर हूं कि गवर्नर साहब को लाने में उन्होंने मदद किया होगा, जय कृष्णा रेड्डी होम मिनिस्टर्स को भी आप उन्होंने मिलवाया, और हैदराबाद में वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो टीम है वो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा करेगी, और इसी होप के साथ थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सभी। थैंक यू मिश्रा सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपका आशीर्वाद सर हमेशा बना रहता है, पता है, हमेशा बना रहेगा सीएफआई के लिए। Sir, next upon thank you Mishra ji, thank you for your nice words. Yeah, please. Next I'll call upon one of the greatest faculty, Shishir Mittal sir, chemistry के किंग अपने कोटा से हैं, और 30 साल से मैं देखता आ रहा हूँ सर आपको पढ़ाते हुए, आज पहली बार रूबरू हो रहा हूँ आपके साथ में। ये बड़ा सुनहरा मौका है मुझे आपसे बात करने का। तो सर आप दो शब्द सर अनम्यूट कर लीजिए। सर अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट। यस, आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायणन जी का, और कृष्ण चैतन्य जिनका नाम ही है तो ऐसा लगता है कि सब पूरी कोचिंग कम्युनिटी चैतन्य होकर सामने आ गई है। तो अच्छी बात है, आपके कृष्णात्मक सम्मोहन में सब बंध गए हैं, एंड लेट्स होप दैट थिंग्स कैरी ऑन वेरी नाइसली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सच तो ये इस तरह की बॉडी की कमी हमेशा खलती रही थी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंसर्न्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर एयर कर सके। अच्छा, नहीं तो उतना ही बड़ा भाषण हुआ, उतना ही हुआ ना। और बीच में क्या हुआ कि आपने, उसने मेरा नाम बोल दिया था और आप बात बोल रहे थे कि आप बोल क्यों रहे हो, आप ऐसा नहीं। आशीष गंभीर ने बिश्नोई के बोलने, मिश्रा जी सर। यस सर, आप कंटिन्यू करें सर। फिर सर शिशिर सर आप कंटिन्यू सर। आप अनम्यूट है सर। म्यूट किया हुआ, अनम्यूट करें सर। हाँ जी बिल्कुल, चलिए, है ना। तो आई विल बी क्विक, आई विल बी ब्रीफ। दो तीन चीजें बहुत अच्छी इस प्लेटफॉर्म पर रेस करी गई, जैसे नितिन ने शुरुआत में कहा था, एंड लगभग सब लोगों ने उसे पिक किया कि जब हम रिकॉग्निशन ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं कि कोचिंग की इज्जत होनी चाहिए, उसका परसेप्शन अच्छा होना चाहिए। प्रमोद सर ने एक बहुत अच्छी बात उसके बाद पॉइंट आउट भी करी थी। उन्होंने कहा था कि परसेप्शन बहुत हद तक हम बनाते हैं। जब हमारे पास बच्चा आता है और जब वो एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाता है तो हमारे बारे में अच्छा परसेप्शन अपने आप बनता है। तो एंड ओवर द इयर्स एक जो टेंडेंसी है शॉर्टकट्स की, कि हम फटाफट जो है शॉर्टकट मार लें और जल्दी से जल्दी वी मेक अ क्विक राइज, ये जो शॉर्टकट मारने की टेंडेंसी है, डेफिनेटली ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से कोचिंग इंडस्ट्री ने इमेज और परसेप्शन के हिसाब से काफी सफर किया है। हाँ, साथ साथ कुछ अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हमारे हैं, जो बहुत टिपिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, एक बार मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। सच तो ये है कि टीचरों को इज्जत दिलाने में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी कोचिंग इंडस्ट्री का रहा है। कारण
अच्छे IITians, IIM ग्रेजुएट्स, जो टॉप लेवल प्रोफेशनल्स हैं, वो इसके पहले एज सच कभी उनका मानस नहीं होता था कि वो K-12 सेगमेंट में मतलब 12 से छोटे बच्चों को एक्चुअली पढ़ाने आए। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी इंडस्ट्री का है कि हमने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया और बहुत अच्छे क्लासिकल टीचर्स आज की तारीख में भी जो हैं वो इस सेगमेंट को प्रेफर करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ बहुत ऐसे बेसिक मापदंड हैं जो कोचिंग इंडस्ट्री में या हमारी कोचिंग इंडस्ट्री ने एजुकेशन में सेट करे हैं। जैसे ये कॉमन सेंस चीजें लगती हैं पर आप देखेंगे पूरे भारत में कहीं है नहीं। जैसे नंबर 1, टीचर को पढ़कर क्लास में जाना चाहिए, उसको पूरी तैयारी के साथ क्लास लेनी चाहिए। अगर आप देखें तो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री को, पूरी कोचिंग फ्रेटर्निटी को ये क्रेडिट जाता है कि हमारे टीचर्स वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और वो बच्चे के प्रति जवाबदेही महसूस करते भी हैं और जवाबदेह होते भी हैं। ये एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो मैं मानता हूं कि सिर्फ कोचिंग तक या सिर्फ गरीब बच्चों की मदद तक सीमित नहीं है। ऑन एन एवरेज एजुकेशन के सिनेरियो को पूरे देश में उठाने का, पूरे देश में एक लेवल को रेस करने का, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को रेस करने का एक बहुत अच्छा क्रेडिट है जो हमारी अपनी इंडस्ट्री का है। एंड आई थिंक दिस आल्सो शुड बी हाईलाइटेड। फिर इसके अलावा आई मीन वी कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन, सच तो ये है, बट ट्रूथ इज वी हैव मेनी स्पीकर्स एंड एक दो छोटी छोटी बातें बोलकर आई जस्ट लाइक टू कंक्लूड। अब टाइम ऐसा आ गया है कि जो हमारी अपनी इंडस्ट्री है उसमें स्पेशली जो वेटरन्स हैं उनको दे शुड लुक फॉरवर्ड टू कि व्हाट नेक्स्ट। जैसे कि प्रमोद सर भी कह रहे थे, कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा, देय क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा लिया, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस खड़े कर लिए, कमाना था कमा लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ टाइम जब खुदा से मिलने की बात आ रही है ना, तो एक बार ये जजमेंट भी लेना होता है कि हाँ भाई क्या कंट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी में। तो सच तो ये है कि स्टैंडर्ड्स एजुकेशन के रेज करने में कोचिंग फ्रेटर्निटी का अच्छा हाथ रहा है, इसको हमें अपने प्लेटफॉर्म पर रेज करना चाहिए। साथ साथ हेल्दी कोचिंग प्रैक्टिसेस पर भी कोचिंग फेडरेशन को स्ट्रेस करना चाहिए, मतलब आइडेंटिफाई करनी चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, सब लोग मिल बैठकर कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई कर ले कि भाई ये चीजें अच्छी हैं, एज अ फ्रेटर्निटी हमें करनी चाहिए। जैसे इस तरह की मीटिंग्स करना, मुलाकात करना, ये हमें करना चाहिए, है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जिनसे हमें बचना चाहिए। कोचिंग ऑफ फैकल्टी है, I mean, I hope I'm not raking too many issues and ruffling too many feathers on this platform. लेकिन ये business call भी है. It is entirely a business call. I am not judging anyone, है ना. But what I'm saying is कि सेशन के बीच का जो फैकल्टी का मूवमेंट है, ये इस तरह की चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी इंडस्ट्री की इमेज को खराब करती हैं। मैं फिर से प्रमोद सर को एक बार कोट करना चाहूंगा, है ना। एंड ही इज अ ट्रू ल्यूमिनरी और बहुत सारी बातें उन्होंने अपने ब्रीफ एड्रेस में कही थी। एक उन्होंने कहा था कि पहले हम बच्चे को बता दिया करते थे कि तुम्हारा होगा या नहीं होगा और तुम्हें तैयारी करनी है या नहीं, पर आज की बिजनेस कंडीशंस ऐसी हो गई है कि कोई सुनना नहीं चाहता। आचार्य चाणक्य का एक वचन है, चाणक्य कहते हैं कि गुरु को, पिता को और वैद्य को कड़वा ही बोलना चाहिए। अगर वो मीठा बोलने लगे तो समझ जाओ दाल में कुछ काला है। तो ये एक ऐसी कसौटी है जहां पर मुझे लगता है कि हमें अपनी इंडस्ट्री को भी परखना चाहिए, और जो स्पेशली जो वेटरन टीचर्स हैं उस बात से सहमत होंगे। इवन जो नए और बहुत ब्रिलियंट टीचर्स हैं जिन्होंने क्लासरूम फेस किया है, वो भी इस बात को जानते हैं कि आपको हमेशा गुडी अच्छी बातें करके आप बच्चे को नहीं सिखा सकते। कई बार जब हम कहते हैं कि बच्चे हैप्पी गो लकी रहें, सब खुश रहें, गाने बजते रहें, सब नाचते रहें, झूमते रहें, सबका तारे जमीन पर होता रहे, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, आई डोंट डिनाई दैट, इट्स अ वेरी रोमांटिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। लेकिन अगर आप भारतीय परंपरा को देखें तो भारतीय परंपरा में ये आवश्यक नहीं है। शिक्षक प्रायः सत्य बोलता है, कठोरता से सत्य बोलता है ना। कबीर के दोहे में भी आपको याद होगा, सबने स्कूल में पढ़ा होगा कि वो कहते थे कि शिक्षक कुम्हार की तरह होता है जो अंदर से सपोर्ट करता है और बाहर से थाप देता है। तो ये थपकियां कोचिंग इंडस्ट्री में अब थोड़ी कम हो रही हैं। जहां हम किसी कच्चे घड़े को शेप दे रहे हैं ना, वहां हमें थोड़ी सी कठोरता बरतनी चाहिए, बरतनी पड़ती है। और जब हम अपने परसेप्शन और सम्मान की बात करते हैं, हम बहुत अच्छा काम करते रहे हैं, लेकिन हमें, चूंकि हम एक अनऑफिशियल फील्ड से हैं, अगर हम नॉर्मल केस से कम 2, 5, 10 गुनी आउटपुट नहीं देंगे, तब तक वो परसेप्शन चेंज नहीं होगा और हमारा सम्मान नहीं होगा। सम्मान बहुत सारे लोगों का बहुत है, आई बिलीव, है ना। तो आई बिलीव कि इसी तरह से हम काम करते रहेंगे, अच्छा होगा। जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं बस उनको थोड़ा सा हटाएं।
सेटिस्फैक्शन की बजाय क्वालिटी इनपुट पर बल दें और बच्चों को समझाएं कि अगर आपको डांटा जा रहा है, पेरेंट्स को भी समझाएं कि अगर आपको डांट तो पड़ेगी और उसके बगैर कई बार गलतियां सुधरती नहीं भी है। शिक्षक का धर्म भी है कि वो सही समय पर सही चेतावनियां दे। मेरे ख्याल से अगर हम जुटे रहेंगे तो परसेप्शन चेंज हो जाएगा। पहली शुरुआत तो CFI ने कर दी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक बार फिर मृत्युंजय सर को, कृष्ण चैतन्य का नाम मैं बार बार ले रहा हूं क्योंकि बड़ा सुंदर नाम है, मुझे याद हो गया है। बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं, गंभीर जी हैं और इन सबको मेरा हृदय से धन्यवाद है। आपने बहुत बेहतरीन शुरुआत करी है एंड आई बिलीव कि इस पैनल को या इस तरह से हम अगर मीटिंग्स करते रहेंगे, गैदरिंग्स करते रहेंगे, विचार विमर्श करते रहेंगे, चीजें और आगे जाएंगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लेट मी एंड विद दिस। संगच्छध्वम संवदंध्वम संवो मनांसि जानताम। ऋग्वेद का कोट भी है कि हम सब एक साथ चलें, एक वाणी में बोलें और हम सबके मन एक हों। इसी प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया शिशिर जी, थैंक यू। थैंक यू शिशिर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और बड़े अपने संस्कृत में सर। नेक्स्ट आई कॉल अपॉन आशीष अरोड़ा सर। इंट्रोडक्शन का जरूरत ही नहीं है सर अरोड़ा सर के लिए, हो रहा। आशीष अरोड़ा सर, बीच में आप चले गए थे, आप शायद वापस आ गए मेरे। जी, थैंक यू आशीष। आई होप। हाँ जी सर, हाँ जी सर। या आई होप आई एम ऑडिबल। Yes, sir. Very. Thank you very much. Once again, I congratulate Mrityunjay Narayan sir, Krishna sir, and all dignitaries present over here for taking this CFI to such an unimaginable level, which none of us have ever thought about it. We all know very well this CFI has taken a shape because of this COVID-19. Before this COVID era, I can say none of us has ever thought about such a platform. Rather, I would correct myself, we might have thought upon it, but we have never thought about practically implementing such a thing because each one of us were extremely occupied in our day-to-day activities. And finally, due to lockdown, lot of insecurities started circulating everywhere. And because of such scenario, long-term vision is contributing to education. शिशिर जी जरा normally म्यूट कर दीजिए। हाँ, थैंक यू। Thank you, Shishir sir. So I just continue with my base point. Finally, we have united at such a platform, and this has become an unmatched system, which is certainly going to create a lot of wonders in coming time in the field of education. I would quickly summarize few things. I would like to share few of my experiences because when I heard about the initiative Sathi Haath Badhana, certainly as I'm next to Shishir Mittal sir, who said this is also a business call, I would always say any business can never grow unless the business think about our society, social upliftment. Everybody across country is getting benefit from a business. The business can never grow. So always there should be a vision. Along with the vision of achieving a goal, there should be a mission for our country associated with the business. We all are running businesses because of which we are associated over here. One thing I would like to contribute, I won't take too long because many speakers have yet to speak. I would like to share one of my experience. I'm associated with a lot of NGOs, and in this COVID period, I got a lot of opportunities to work for different type of students, children across the country as well as my state. But one NGO I would like to quote over here, with which I'm also associated. When this time was, the time was starting of online era, I can say in Indian education system from March mid, when people were thinking about the scenario, and suddenly COVID lockdown started by end of March, last week of March, and everybody started accelerating their online feelings, online ventures, and their initiatives by which they'll be able to take care of all the students. On the contrary, there was one NGO who was worried about the scenario, the children of those daily wages labor, those who are not even having smartphones, they are still using the mobile phones of
cost around 300-400 rupees. The time was coming up when everybody started feeling when EdTech organization have increased their budget and publicity, they have become extraordinary brand. We all know about the kind of investment happening in our country. In today's newspaper headline, I also read so much of millions of investment have been made in edutech apps, and all such scenario were mushrooming. But finally, that NGO was working on those daily wages labor who were having extreme problem of migration toward their villages. They were losing their daily wages jobs. Their children were not able to go to school. They were not having any smartphones. Then that organization started working. They approached me, and I was so impressed with their vision. इन लोगों के पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है, ये ऑनलाइन कहाँ से पढ़ेंगे? Then I also thought upon and I contributed one thing. When we talk about potential, because in past 28 years of my teaching, I've seen such a students who are not brilliant student up to grade 10. And many of us, or even many of my teachers, and I'm also one among those who used to say in grade 11, this is the student who is going to make it among top 100 in IIT. This is the one who is going to top. He's having such a speed and accuracy. He's going to top the NEET examination, AIPMT examination of that time. We used to say, but in parallel, I've seen students who were 45-50% holder in grade 10. They were able to make it in 3 digit into IIT JEE. I've seen many such students, and I realized one thing: our human brain is made up of such nervous tissues which are perfectly trainable. If we talk about a critical problem of calculus and mathematics, maybe in the beginning the problem is very tough. But if a teacher explains the solution of that problem in an innovative way, in an innovative language, in an innovative style, and if a student is able to solve the problem comfortably, the student gains confidence on the language of teacher, and later, if the same level of problems 1, 2, 5, 10, 20 times a student is solving on the same single concept, our human brain tissues which are involved in that level of manipulation in that particular problem of calculus, these tissues get trained on such manipulations, so that after solving 20 times the different problems based on same concept, when a new problem comes, our brain immediately strikes this problem can be solved in this way. And I've seen, based on this methodology of tissue training of human brain on every kind of manipulation, we all know well the importance of practice. एक क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड 20 टाइप के क्वेश्चन बना दें, सिंगल कॉन्सेप्ट है. If a student is solving those 20 questions on the same concept, then 21st question, a student will be certainly having very high speed, very high accuracy, without any silly mistake. He is certainly able to solve the problem. This is basically a biological factor which is residing in our human brain, our brain tissues which are involved in that particular specific manipulation. Our tissues get trained on that. We are able to correlate instantly with high speed accuracy. We are able to manage. With this model, I'm just coming back to the story which I started for that NGO. They were also working in the similar model. In our rural areas, such students are found who are so much manipulative, those who are having that level of brain applications, but they are not getting opportunity of this level of practice. I have seen so many students, I'm able to recall those students who scored 45-50% in 10th board examination, and they scored around 950 AIR in IIT JEE, 1500-1700 rank in IIT JEE. Several students I've seen, many of you might also witness the effect and the output produced by the hard effort of such students. Similarly, I can say in rural areas, there are many students who are having that level of brain, who are, if given guidance, they'll be able to elevate themselves, and they'll contribute much more in our country's growth and our social growth compared to those who are from very well-off families, those who are always selfish. They think about themselves, their own individual career. Very few students I've seen who are from very well-off families and they think about country upliftment. They are totally bothered about their own career. Parents are also worried about their own career, because parents know well in their childhood they were not getting facilities, but now parents are well off, so they want to give facilities to their child, so that child will be able to make extraordinary career for himself, not for the country. That NGO is working for such students, where
Mobile phones are not available. Laptops are out of question. There are very few students in state government. They have provided laptop to students who scored 90% or more in many states. In Rajasthan, UP, MP, state governments have provided laptops, but facilities are not there. Those laptops, even few of the poor people, they are selling laptops at a cost of 7,000, 8,000 rupees, so that in lockdown period they'll be able to feed their family for at least 1 or 2 months. So practically, I would say, if CFI can take up such a thing, I'm just giving a suggestion, rest everything we can plan. When we talk about the online era, certainly we can do many things, and almost all coaching institutes have finally upgraded themselves to a fully online mode. Extraordinary mode is already available for everyone, and we are guiding students in online model. And with this united format, certainly our individual businesses are going to grow. CFI is certainly going to support each one of us to grow our business, because nobody can compare the strength of Unity with any other scenario of marketing or anything. Because when we talk about the core education values, the kind of teachers associated with our classroom coaching system can never be matched with any of the online education or edtech industry player in existence in market. I would say one thing, if CFI can take up such initiative, I highly appreciate this Saathi Haath Badhana, but along with this, if we can plan something, some educational kits can be planned which are limited up to papers, limited up to some educational sets. Already, I can say my honorable director and my elder brother Brajesh Maheshwari sir is also here. Naveen Maheshwari sir, I've already discussed about this. Alan is also supporting such NGOs at many levels. I would appreciate if everyone will plan creating some standardized academic kits for such students in rural areas. We identify rural student on the basis of personal interviews. If we try to find out a student on the basis of some written tests, those students will never be able to perform at any level in written tests. We need to judge their IQ level by personal interviews. We are so strong in IQ judgment. If I am able to talk to a rural student for 15 minutes, I can tell you that this student has some spark, this student has some vigor, this student is having that level of passion. If he is given guidance, he'll be able to create miracles. If we are able to identify 10,000 such students from Indian rural background, and we guide them by paper kits rather than online system, paper kits, or even that NGO is planning to distribute some tablets or some 7-inch small tablets through which they'll be able to feed them with the online lectures, and such a student should get guidance, counseling sessions along with video lectures, so that with the passion they are having, they'll be able to achieve extraordinary milestones. I'm very sure CFI can do this. Individual coaching institutes can never do this beyond a limit. A coaching institute can only support 25, 50, 100 students free of cost. It will be very, very difficult to guide such a student, but I'm telling you, such students are so much capable in themselves. They don't need our support. They just need resources, counseling, and support system. They can elevate themselves to an extraordinary level. And even we are also going to get credit of their results if we are supporting them. So in rural areas, those practically speaking, when this NGO planned some this technical interview, I'm a witness. I'm telling you, a father denied. Government school supported because the student was having 85% marks, and we decided to keep a benchmark through that NGO. Okay, fine, we'll touch and take interview of every student who is having 80-85% score in their government school examination or even 10th board examination. When we interacted, we were providing to and fro facility to Jaipur to that daily wages labor. Bhaiya, aap apne bete ko leke aao, hum iska interview lenge, because we are finding a potential, will guide him, uska rehna, khana pina sab denge. You won't believe the kind of reply that father has given. Sir, aapne mujhe आने जाने का खर्चा तो दे दिया, लेकिन मेरे 2 दिन खराब होंगे तो मेरी 2 दिन की दिहाड़ी का क्या होगा, आप वो दे पाओगे क्या? He was not ready to come for his child because उसके लिए वो दिहाड़ी important थी. 2 दिन उसका घर कैसे चलेगा? मतलब it brought tears in my eyes that time. This is a scenario in our rural areas, and I'm telling you, such students can put in
so much of hard efforts, which even those people who are paying hefty money in our coaching institute, they can't do that, because the students who are paying hefty money for the fee of coaching, they have lot of excuses. मेरे घर के अंदर ये हो गया, मैं 2 महीने से बाहर नहीं निकला हूँ, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो रहा हूँ, डिप्रेशन है इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ. Such kind of excuses are given by those students whose parents have paid lakhs of rupees of money to us as coaching institutes. But such students, I'm telling you, they don't need us, they just need our guidance, support. उनको हम पेपर किट्स दे देते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल किट दे देते हैं, एक छोटा सा टैबलेट 5000 रुपीज का दे देते हैं. I'm telling you, they can do everything on their own. वो कभी डाउट पूछने नहीं आएंगे, and I'm very sure they'll stand among top 3000 ranks in IIT and NEET certainly, and they are going to beat these students because the kind of passion such students are having, वो passion हम सब में है, because we have seen that time. आज के students वो क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको वो फैसिलिटीज और सारा लग्जरी दे दिया, वो स्टूडेंट कभी भी उस लेवल तक फील नहीं कर पाते. दैट इज अ मेजर इशू. एंड वी वर मोस्ट ऑफ अस हु आर सिटिंग इन दिस मीटिंग, आई नो वेरी वेल, I can relate all of us together, that we have seen that time in our childhood, because of which that passion and vigor to achieve something has brought us to this level. And these all students are at that level, so we need to find our likeliness into them. What we were at that time, if we are able to find such a student from our rural areas, each one of us have tried to adopt 5 or 10 villages in nearby areas and try to find 1 or 2 students per village, this will be a major contribution of CFI to our nation. I can tell you those students are going to change our country's economy to a different scale. I'm associated with another NGO. I think you might have heard about SOS SOS Children's Village. They are doing a wonderful job, but they are providing all the facility to the student. But I have seen Ellen is also supporting many of SOS students. We are not charging fee for any children from SOS Children Village who are joining us for competitive preparation or anything. Results are decent, but I have seen every student in SOS Children Village, they are trying to provide all the facilities which we are providing to our children. And all such children, such culture and thought processes are being instilled and inducted in these students, that after passing out from grade 12 or their graduation, every SOS Children Village student, those who are orphans, not having complete benefit of their real parents, they are contributing to a lot to their SOS Children Village and trying to uplift their next generation in the same SOS Children Village. Similarly, if we try to build some kind of facility for villages, now all across India, educators from coaching industry are already united. At least we should do something for such children. Most important thing is to identify them, find out at least 1 or 2 students from each village, because any student in a village who is the topper of his school, he is having that level of willingness, because किसी भी स्कूल का टॉपर होता है तो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर या प्रिंसिपल भी मोटिवेट्स हिम, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, यू कैन डू वंडर्स फॉर योर कंट्री, एंड दे आर हैविंग दैट विलिंगनेस, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज दे आर नॉट एबल टू ग्रो, एंड फाइनली द पोटेंशियल इज लॉस्ट इन नॉर्मल ग्रेजुएशन कॉलेजेस और समवेयर और सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हिच वी can't even think upon. They can make a bright career, and finally they also turn out to be a daily wages labor. So if this CFI will be able to contribute to this level, I think this would be the best role of CFI to our contribution for the growth of our country. That's it, what I was willing to share. I'm very sorry. Thank you, sir. Thank you. In between, I was not available for a couple of minutes. Thank you very much. Thanks. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And as you said, teachers are the alchemists who can make plastic brains elastic. So, rightfully true, sir. Ashish ji, please. Thank you, Ashish sir. Always inspiring students across India. सब चाहते हैं आशीष अरोड़ा सर से पढ़ना. Next I call Ajay sir. Ajay
आज हाँ जी, तो आपको गुड आफ्टरनून और बहुत अच्छे प्रोग्राम के लिए सुन